Today's topic is little different. Although I'll be talking without showing slides, how to prepare also research papers. But main topic which was assigned to me or which I had been asked to deal with, it is little after the publications. Okay, once you publish the paper, how do you publish, in which journals you publish, and then what will be the impact factor, and then what will be the credit you will get out of your publications or not. Because see, many people are publishing papers. Many people. As I was talking last time, I told that even some people they publish in the predatory journals, right? Just for the sake of publications. Just for the sake of publications. Okay, I have one. मेरे पीछे में बायोडाटा में मैं 2 4 8 10 ये कर देता हूँ, right? So that should not be criteria कि हम लोग बस खाली पब्लिश करें और नंबर डालें, कितना नंबर हो गया कितना नहीं। ठीक है, आप कहेंगे सर अगर आपका भी 150 से ज़्यादा है, हो सकता है बहुत सारा खराब होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, most of the papers are good. Most of the papers, although I have published mostly in international journals, at least 122 or 125 in international journals of record. That includes your plus one, science report, nature.com, journal of ethnopharmacology. You can go through my, yeah. But I'm not talking about myself. Even as compared to me, you will find there are many who are doing very good research, even in India, and they are publishing in good journals. They are publishing. But at the same time, there are many, unfortunately, let me tell you that many are from college backgrounds, colleges, not in universities, UTDs. They are publishing mostly in substandard journals, mostly in substandard journals. So if you look to their credit in terms of, say, impact factor of the journals in which they publish, or the H index, I index, G index, because G index is not very commonly used, you will find that they are nowhere else. Even senior professors who used to claim that they are very good researchers. Okay, even I'm talking about uh, the papers which we have published. Even they are not in very highly impact journals. There are journals which are having more than say 20, 40 impact factors, but only impact factor is not enough. The citation index, right? This is another one which is very important, and nowadays that is being considered. Okay, that is being considered. So there are different things which are considered in giving the credit to the publications, and some of you must be knowing, those who are from academic backgrounds, those who are in college or university, as your what's going as you must be knowing that UGC is giving importance again to the authorships. How many authors are there in the papers? How many? What is the impact factor of that paper, right? And whether you are published in peer-reviewed journal or not, or in the ordinary journal. So depending on that, at the time of your promotion, or even at the time of your selection or entry point as a lecturer or assistant professor, they used to consider, and they generally calculate the API score, API score, academic performance indicators scores. So they consider all these things. Okay, and probably citation as such, it is not being considered by UGC at present, but that will be certainly considered when you appear for certain interview, because now they are looking how many citation factors you have, citation index you have, whether you are having good H index or I index or I10 index, or say your impact factor, what are the different cumulative impact factors. Then all these things these are considered at the time of interview, particularly if you are going to appear to the scientific post, even in professor post. So we have to deal these things. Of course, I'll be giving only the outline because this is the second part, not the primary part. Primary part is to do good research. So do good research and forget about the result. क्या होता है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम करके अच्छा जर्नल में पब्लिश कर रहे हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर का जर्नल में पब्लिश कर रहे हैं, एंड देन अगर पब्लिश कर रहे हैं तो जरूर आपका साइटेशन, जो आपका पेपर को साइट करेंगे लोग, ये बढ़ जाएगा।
So ultimately, what we are doing, we are publishing, as I was talking last time, yesterday, that we are publishing for the sake of or for the benefits of the common people or the people, right? And so they read and they can at least, I mean, cite your published papers if they feel it is a good paper. Otherwise, they will not find. That's the thing. So, how many people are reading? How many times your paper is being cited? That is very important. Okay. So, from that point of view, we will be discussing that how the indexing is done. Before that, let me ask you, what do you mean by indexing? आई एम श्योर आप लोग तो सुने होंगे, जैसे लाइब्रेरी में आप जाते हैं, लाइब्रेरी में इंडेक्सिंग होता है, या कहीं भी आप जाते हैं इंडेक्सिंग होता है. Even if some of you are not present in doing any active research, but at least at the PG level also, I'm sure you must be visiting the library. लाइब्रेरी में जब आप जाते हैं, आप सीधा किताब ढूंढने के लिए क्या करते हैं, आप इंडेक्सिंग को जाके देखते हैं पहले. तो ऑल गुड लाइब्रेरीज दे यूज टू डू द इंडेक्सिंग, राइट, सब ज़्यादातर. और इंडेक्सिंग में नॉर्मली आइदर अल्फाबेटिकली होगा या फिर कुछ और कोड वर्ड दिए होंगे और कुछ किए होंगे. तो कैसे करते होंगे, क्योंकि उन लोग इतना सारे किताबें, लाखों किताबें हैं लाइब्रेरी में. तो लाइब्रेरी में उन लोग क्या करते हैं, हर किताब को अरेंज करते हैं, फिर ग्रुपिंग करते हैं. जैसे कि साइंस का एक हो गया, साइंस में अंडर साइंस फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, जोलॉजी, बॉटनी, आयुर्वेदा, कुछ भी, बायोमेडिकल साइंस, कुछ भी जो ये करते हैं, मतलब ग्रुपिंग करते हैं, है ना. और फिर उसमें फिर फर्दर इंडेक्सिंग करते हैं अल्फाबेटिकली या नंबरिंग देके कुछ करते हैं. सो ये जो है इंडेक्सिंग सिस्टम जो है, इट इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ डाटा, राइट, सच एज ग्रुप ऑफ फाइल्स, या फाइलिंग करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, एंड डाटाबेस को उन लोग बनाते हैं. It's a methodology. You can simply say it is a methodology of grouping the different you can say articles or in books or anything else. I'm talking about articles because I'm right now talking about the research articles. So grouping उन लोग करते हैं, so that it becomes easier कि आप लोग उसको रिट्राइव कैसे करेंगे वो इजी हो जाए. ठीक है. So basically it is defined as the act of classifying and providing an index in order to make it easier, right, to retrieve the classifications. ये क्लासिफिकेशन को रिट्राइव करने के लिए, easier करने के लिए ये आपका जनरली कंसिडर किया जाता है, राइट. सो ये जो क्लासिफिकेशन होता है, इट इज नथिंग बट यू कैन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स इनटू क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट कैटेगरीज, एंड सिमिलर कैटेगरीज को एक ग्रुप में रखते हैं, और भी थोड़ा सा डिफरेंट है तो उसको डिफरेंट ग्रुप में रखते हैं, अलाइन वाले को पास पास रखते हैं. जैसे साइंस का मैं बताया, साइंस का आपका बॉटनी, जोलॉजी, ये सब पास पास रखेंगे, ह्यूमैनिटीज को पूरा अलग कर देंगे. सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कैटेगराइजेशन सिस्टम है, हम लोग का आर्टिकल्स में भी होता है, हर चीज में भी होता है. एंड टिपिकली I mean, it is a typically saved in plain text format में ये करते हैं. जनरली कोई जरूरी नहीं कि उसको हाई फाई बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज करना है, लेकिन इसको जनरली करते हैं, which one can easily scan. So indexing एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज हो गया. और बहुत सारे डाटाबेस आजकल बन रहा है, डाटाबेस बहुत सारे, साइंटिफिक डाटाबेस बेस के लिए, बाकी डाटाबेस के बहुत सारे बन रहे हैं जो कि काफ़ी यूजफुल. सो व्हाट अ डाटाबेस, डाटाबेस से इंग्लिश में व्हाट अ डाटाबेस, नथिंग, इट्स नथिंग. आप सुने होंगे, मैं कभी कभी ट्विटर में ये करता हूँ कि बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स से, आप जैसे आप लोग पीजी कुछ कर रहे हैं, पीजी के बाद आप लोग सोचेंगे कि हम रिसर्च करें तो किस फील्ड में रिसर्च करें, किसके अंडर रिसर्च करें. बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास भी आते हैं कि सर मैं तो उस फील्ड में रिसर्च करना चाहता हूँ, जैसे मैं हम लोग का HRBC में लेता हूँ, या रविशंकर में लेता हूँ, बाकी भोपाल में लेता हूँ, अक्सर क्लासेस लेता रहता हूँ HRBC में. तो उन लोग पूछते हैं सर हम लोग एज ए टीचर के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन किसके अंडर ज्वाइन करना चाहेंगे, आप जरा बताइए. तो किसके अंडर ज्वाइन करने के लिए उन लोग को बेचारे को कभी कभी फंस जाते हैं. कैसे फंस जाते हैं, दे डू नॉट नो. सपोज
particularly I'm talking about the college students. ऐसे नहीं कि कॉलेज स्टूडेंट्स अच्छे नहीं होते, दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, और फर्स्ट क्लास क्या, कभी कभी बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स कॉलेज से निकलते हैं। इनफैक्ट मैं भी कॉलेज स्टूडेंट्स को लिया हूँ, लेकिन मैं जनरली आइदर नेट और गेट क्वालिफाइड वाले को लेता हूँ। बट आई फाइंड that some students they really suffer in searching a good mentor or good PhD scholar. अब हम कहेंगे आपको कैसे सर्च करना है, अगर आपको पूछे सपोज आप लोग भी जैसे रिसर्च करना चाहेंगे, आप सोचेंगे सर मैं इस फील्ड में रिसर्च करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे ढूंढूं कि किसको मैं मेंटर बनाऊं या किसको मैं गाइड बनाऊं, मुझे समझ में नहीं आया। और मैं टाइम मेरा वेस्ट नहीं करना चाहता, जो अच्छा काम करता है उसी से करता हूं, ठीक है। सो यू हैव टू डू सम सर्च, यू हैव टू गो टू सम डाटाबेस, और वो डाटाबेस में जाकर सर्च करना पड़ेगा। आई एम श्योर आप लोग गूगल सर्च करते हैं, राइट, google.com में जाके करते हैं, या फिर अगर साइंस की है तो आप pubmed.com में जाएंगे, एनसीबीआई का डाटाबेस में जाएंगे। अब सपोज आप कोई करना चाहता है कि मैं माइक्रोबायोलॉजी में करना चाहता हूँ, कोई कहता है कि मैं उसमें करना चाहता हूँ, कैंसर बायोलॉजी में करना चाहता हूँ, कोई कहता है कि मैं एंडोक्राइनोलॉजी में करना चाहता हूँ, कोई किसी भी फील्ड में। आप ढूंढेंगे कैसे, आप तो पहले जाएंगे, फिर उसमें देखेंगे, आप डालेंगे माइक्रोबायोलॉजी, या आपका जो फेवरेट जिसमें करना चाहते हैं कैंसर बायोलॉजी, या उसमें डालेंगे। सो माइक्रोबायोलॉजी अगर डालेंगे तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं, चाहे वो पबमेड हो चाहे वो गूगल से, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। फिर आप सोचेंगे मैं तो माइक्रोबायोलॉजी में इस पे काम करना चाहता हूँ, मैं बायोरिमेडिएशन में काम करना चाहता हूँ, या मैं फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में काम करना चाहता हूँ। सो आप वो वर्ड डालेंगे, ठीक है ना, वर्ड डाल के आइदर सिंगल वर्ड और इन कॉम्बिनेशन डालेंगे। सो ये जो वर्ड डालते हैं उसके बाद बहुत सारे लिटरेचर आते हैं, एंड आप उसमें से देखेंगे कि क्या क्या काम हुआ है इस पे, और मेरे फील्ड में जो मैं सोच रहा हूँ उसमें कितना काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो आप उसको पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको आइडिया इतना नहीं है कैसे मैं कीवर्ड्स को डालूं और कैसे करूं, तो फिर आप ढूंढते रहेंगे, फिर भी आपको जो सुटेबल रिजल्ट या आपका डिजायर्ड रिजल्ट विच यू वांट टू नो दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट, वो आपको नहीं मिलेगा। तो एक तो ये होता है कि आप जो कीवर्ड्स डालेंगे किस बेसिस पे, आपका डिजायर्ड टॉपिक या डिजायर्ड फील्ड का कीवर्ड डालेंगे, उसमें देखेंगे। दूसरा, आपको ढूंढना है कि अरे मैं मुझे तो काम करना है इसमें बुंदेलखंड में, या मुझे तो काम करना है झांसी में या यूपी में या इंडिया में, मुझे तो बाहर नहीं जाना, तो आई वांट ए गाइड इन झांसी। सो ये जो है कि आप ढूंढेंगे कैसे प्रोफेसर को या साइंटिस्ट को, ठीक है। आपको आपको अगर बीच बीच में पूछना है तो पूछ सकते हैं। ढूंढेंगे कैसे, आप उनका नाम डालिए। सपोज आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पबमेड में जाइए या गूगल में जाइए, कहीं भी साइंटिफिक डाटाबेस है तो पबमेड में जाइए, आप मेरा नाम डाले ए कर या कर ए, ठीक है। एंड कर सरनेम वाला बहुत सारे हुए, तो आप क्या करेंगे, कर ए कमा इंदौर लिख दीजिए, क्योंकि आई एम फ्रॉम इंदौर एंड यू नो फ्रॉम दैट आई एम फ्रॉम इंदौर। सो कर ए इंदौर का जो मेन मेन पब्लिकेशन है बहुत सारे आ जाएगा, बहुत सारा आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसको देखेंगे कि हाँ कर ए इतना पब्लिकेशन से अच्छी जर्नल में है कि नहीं है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, किस तरह का काम कर रहे हैं, कौन सा फील्ड में काम कर रहे हैं, आइडिया लग गया। सिमिलरली आप अगर झांसी में करना चाहते हैं, भोपाल में या कहीं भी करना चाहते हैं, उसका आदमी का अगर नाम जानते हैं वो दीजिए, और फिर कॉमा देके भोपाल लिखिए। सपोज आप वो भी नहीं जानते भोपाल में अच्छा वर्कर है कि बुंदेलखंड में है कि ग्वालियर में है कि और कहीं है, वो भी नहीं जानते, लेकिन आपको इंडिया के अंदर करना, तो सिंपल खाली आप इंडिया डालिए। सपोज कैंसर में करना है, कैंसर कॉमा इंडिया, तो जितना इंडियन वर्कर्स होंगे उतना आ जाएगी, या कैंसर को एक ब्रैकेट में रखिए, फिर एंड, फिर इंडिया, इस तरह का डालिए। अब ये जो बात मैं कह रहा हूँ कि यू कैन फाइंड आउट वेदर ए पर्सन इज रियली एक्टिवली वर्किंग ऑन योर डिजायर्ड फील्ड और नॉट। तो टू स्पॉट ए पर्सन, टू स्पॉट ए साइंटिस्ट, टू फाइंड आउट ए साइंटिस्ट ट्रू वर्कर, उसको आपको देखिए।
और मैं वही कहता हूँ, जब आप रिसर्च करना, आई समटाइम्स फील वेरी sad or very concerned for some students who, because of not knowing how to search a particular worker or researcher, they used to end up with a person who is not actually a good worker. और फिर क्या होता है, 2-3 साल के बाद जब काम नहीं हो पाता है, वो चाहता था कि अच्छा काम करे, काम नहीं हो पाता है, तो फिर उनको 3 साल के बाद छोड़ना पड़ता है. सो इट इज मियर वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी. तो करना है, खुद तो आप इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए बहुत अच्छी ढंग से, लेकिन आप एक अच्छा सुपरवाइजर के अंडर भी करना चाहते हैं, तो एक तो सजेशन दूसरा का भी ले सकते हैं, लेकिन खुद भी आप सर्च कर सकते हैं. सो दिस इज सर्चिंग बिजनेस फ्रॉम लार्ज डाटाबेस, एंड दिस विल हेल्प यू. ब्लाइंडली डोंट ज्वाइन विद एनीबडी, बिकॉज आपका फ्यूचर, हमें मानता हूँ कि कभी कभी आपको उनका बिहेवियर के बारे में, पर्टिकुलर गर्ल स्टूडेंट ज्वाइनिंग विद समबडी, यू हैव टू आल्सो सी देयर बिहेवियर, जो कि उनका लैब कलीग्स है या जो प्रोडक्ट बन चुके हैं ऑलरेडी, पीएचडी कर चुके हैं, उनसे भी पता करना पड़ेगा, तब जाके आप ज्वाइन कीजिए. अदरवाइज ब्लाइंडली जस्ट डोंट जंप और जस्ट डोंट ज्वाइन विद एनीबडी, क्योंकि एक बार ज्वाइन कर लेते हैं ना, फिर आपको वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है, और अच्छा भी नहीं लगता है किसी को आप ज्वाइन कर रहे हैं फिर छोड़ दे रहे हैं फिर और फिर. दिस इज नॉट ऑल्सो राइट. So don't waste your time, give little time, and this thing will also help you in searching not only the desired topic, or not only your field of research, but also a particular person or scientist under whom you can work smoothly and you can be productive in nature. ये बहुत जरूरी है. सो क्या है, पहले मैं बता दूं. सो दीज आर जनरली जो ये होता है, डाटाबेस सेट ऑफ डाटा रहता है, ये जो लिटरेचर का ही है सर्च करते हैं, दीज आर ऑल सेट ऑफ डाटा, एंड जनरली दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर और इन द कंप्यूटर. सो इंटरनेट जब आप खोलते हैं, इंटरनेट थ्रू से आपको ये सब मिल जाता है, स्पेशली वन दैट इज एसेसिबल इन वेरियस वेज, डिफरेंट डिफरेंट वेज में एक्सेस कर सकते हैं. कीवर्ड डालिए, जैसे मैं बताया ऑथर के नाम करके भी डाल सकते हैं, आपके काम के बारे में कीवर्ड दे के डाल सकते हैं. फिर एक एडवांस सर्च होता है, एडवांस सर्च कर सकते हैं और फाइन सर्चिंग करने के लिए. तो इस तरह का आप कर सकते हैं. अब बताता है कि मैट्रिक्स, डिफरेंट मैट्रिक्स कैसे करेंगे. मैट्रिक्स का ऑर्डिनरी मीनिंग क्या है? मैट्रिक्स का ऑर्डिनरी मीनिंग इज मेजरमेंट. यू मेजर समथिंग, इट्स अ मेथड ऑफ मेजरिंग समथिंग और मेजरिंग द रिजल्ट्स, कोई भी. सो डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं टू सर्च द डाटाबेस, राइट. कभी कभी इसको कहते हैं, ऑफन इट इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग और इवेल्युएटिंग समथिंग. यू इवेल्युएट समथिंग, स्पेशली वन दैट यूजेस फिगर्स इन स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि आपको हर चीज फिगर्स इन स्टैटिस्टिक्स फॉर्म में, मैं बाद में बताऊंगा आपको कैसे साइटेशन को फिगर्स एंड टेबल्स में भी लिखा जाता है. आप अगर डालेंगे तो हिस्टोग्राफिक फॉर्म में आपका पर्सन का साइटेशन कितना है, किस साल में कितना है, सब आ जाता है. तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाए कि हाँ, वेदर ही इज अ गुड वर्कर और बैड वर्कर और नॉट सो गुड वर्कर लाइक दिस. तो ये आपको आइडिया होना जरूरी है. अब बताता है, ये जब आप डिफरेंट मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स में आपको मैं कह रहा था कि इम्पैक्ट फैक्टर दे के भी मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंडिसेस. आप नाम दे के भी एक इसको भी मैट्रिक यूज कर सकते हैं डाटाबेस सर्च करने के लिए. आप जगह का नाम दे के भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी. लेकिन प्रीफरेबली मैट्रिक्स जो वर्ड यूज है, जो कि आप मेजर कर सकते हैं, और मेजर करना जनरली क्वांटिटेटिव डाटा में हम लोग जनरली मेजर करते हैं. आई एम श्योर यू नो द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. आप अगर उसमें डालेंगे ना कि कंप्यूटर में अब या इंटरनेट में, हु इज द बेस्ट पर्सन और बेस्ट साइंटिस्ट इन इंडिया, नहीं आएगा. ठीक है ना, नहीं आएगा. इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि इस तरह का आपको कोई एनालाइज करके रखा नहीं. अगर डाटाबेस होगा बता देगा, लेकिन ऐसे जनरली होता नहीं. लेकिन आप डालेंगे कि इस पर्सन का कितना पब्लिकेशन है, क्या है, वो आपको मिल जाएगा लाइक दिस. सो क्वांटिटेटिव होना जरूरी है. क्वालिटेटिव की बात जनरली कंप्यूटर इतना आसानी से स्टोर नहीं करता है. क्वांटिटेटिव सो दैट यू कैन मेजर. सो मेजरमेंट इज जनरली क्वांटिटेटिव. जैसे आप लोग मेजर करते हैं कितना अमाउंट ऑफ वाटर, इतना ml, इतना ml, इतना ml, कितना नंबर ऑफ पब्लिकेशन, 100, 150, 120 लाइक दिस. सो क्वांटिटेटिव होने. सो क्वांटिटेटिवली यू कैन इवैल्यूएट
किसका कितना है, किस फील्ड में कितना है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो आप कर लेंगे, इसकी बाद आपका बात आता है कि हम लोग किस तरह का क्या 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 फॉलो कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट डाटाबेस। एज आई टोल्ड, डाटाबेस आर नथिंग, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर फैशन, उसको रखा गया। बहुत सारे, ज्यादा तरह का डाटाबेस इंटरनेशनल लेवल का ही है, इंडियन का भी है। हम लोग का जैसे एग्रीकल्चर साइंस का डाटाबेस है, बायो साइंस का डाटाबेस है, वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन बाहर के जो वेल नोन है, जैसे कि स्कोपस, स्कोपस इज वन ऑफ द डाटाबेस विच इज वेल नोन। आई डोंट नो आप लोग फॉलो करते नहीं कर, ये जनरली एलसीवीआर ये करता है। सो स्कोपस जो है, इट इज थॉट टू बी द लार्जेस्ट database of peer reviewed literature. Now when I say database तो समझ में आ गया, लार्जेस्ट भी समझ में आ गया, लेकिन when I say peer reviewed literature, what do you mean by peer reviewed? अब देखिएगा, आप लोग जब लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करेंगे ना, या आप लोग जब कहीं प्रमोशन के लिए आपका एप्लीकेशन डालेंगे, या आपका इवेलुएट होगा रिसर्च आउटपुट, या कौन सा जर्नल में पब्लिश किए हैं, जनरली एक देखा जाता है आपका पेपर पीयर रिव्यूड जर्नल में है कि नहीं है, राइट? सो दैट ordinarily it means whether it has been reviewed properly or not. कुछ जर्नल्स होता है, जैसे मैं कल बता रहा था, प्रीडेटरी जर्नल्स। प्रीडेटरी जर्नल्स में क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं कि थॉरोली रिव्यू करे, तो रिव्यू प्रोसेस इज नॉट वेरी गुड, they do not maintain the standard. You have paid money or you have given some amount towards processing charges or as publication fee, your paper will be accepted even if it is substandard paper. Right? Now, that type of publication has no meaning unless until it has been peer reviewed. Okay, I don't say all peer reviewed journals are very good. It's not necessary. There are peer reviewed journals which are not very up to the mark also, because they are considered the reviewers ordinary reviewers. मैं आपको एक चीज बता दूं, आजकल आप सरप्राइज होंगे सुन के कि रिसर्च स्कॉलर्स, those who are not even PhD holders, just SRF or something like that, having few publications, 5-6 पब्लिकेशन, उनको भी कुछ कुछ पब्लिशर रिव्यूअर के एज ए रिव्यूअर कंसिडर करते हैं। Some of my students who are lecturers, just lecturers, right, or assistant professors, they are now reviewers even in international journals, new international journals. They used to ask कि आप रिव्यूअर बनना चाहते हैं, और रिव्यूअर बनना चाहते हैं तो हम लोग आपके पास भेजेंगे। सो व्हाट दे थिंक कि अरे मैं तो, मेरा 5 पेपर है बस, मैं रिव्यूअर बन गया, बहुत अच्छी बात है, चलो यस कर दो। फिर उन लोग कैसे रिव्यू करते होंगे? पीएचडी टाइम में तो ज्यादातर तो सुपरवाइजर ही हेल्प करता है। Of course, exceptional cases are there. Some students are exceptionally good. They learn everything during PhD, but not necessarily. At least in India, I'm sure 95% PhD students are not up to the mark to become independent researchers. नहीं बन पाते, यही दिक्कत है। Otherwise, in India, we are producing very good number of PhD students, and I always believe PhD has no meaning without publications, without good number of publications. PhD कुछ भी लिखो डालो, थीसिस अप्रूव हो गया, कुछ भी भाई बॉस में बता दो, हो गया, आप PhD ले लिए। एंड देन PhD कौन करते हैं? PhD करने के बाद क्या होता है, कोई अप्लाई कर रहा है पियोन की पोस्ट के लिए, कोई अप्लाई कर रहा है आपका चौकीदार की पोस्ट के लिए, कोई अप्लाई कर रहा है स्वीपर की पोस्ट के लिए। यू माइट हैव हर्ड दिस थिंग्स इन द न्यूज़पेपर। आई फील रियली वेरी पिटी अबाउट दिस PhD होल्डर्स कि PhD के highest, one of the highest degrees you are getting, and you are applying for what? Peon, चौकीदार, स्वीपर, क्योंकि एक परमानेंट जॉब मिल जाएगा, घर में बैठने से अच्छा है कि चलो कम से कम 15,000 रुपया मिल जाएगा पर मंथ। यही, there are many PhD holders who have joined in private colleges. They are earning not more than 10,000 rupees per month, 5,000 rupees per month. पेन एंड पेपर में 10,000 लिखा रहता, प्रैक्टिकली मिलता 5। आई यूज्ड टू गो फॉर इंस्पेक्शन टू डिफरेंट कॉलेजेस फ्रॉम यूनिवर्सिटी। आई नो these are the facts. दिस शुड नॉट बी देयर। सो आप जो है, जो रिव्यू भी होता है ना, पीयर रिव्यू, ठीक ढंग से रिव्यू हो, पीयर रिव्यू होना चाहिए। अब बाहर का पेपर देखिए, रिव्यू करके जब आता है
कभी कभी 3 रिव्यूअर 4 गए, few they used to give time, although reviewing is a thankless job, बट आई यूज टू लाइक रिव्यूइंग। ठीक है, थैंकलेस है, मुझे पैसा कुछ नहीं मिलता, फिर भी मैं करता हूँ, बिकॉज थ्रू दैट आई ऑल्सो लर्न मेनी थिंग्स एंड पीपल नो मी इंटरनेशनल, पीपल नो मी इंटरनेशनल। इनफैक्ट आई जनरली रिव्यू मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल पेपर्स एंड आई यूज टू गेट इन्विटेशन, बहुत सारे मिलते हैं। लेकिन ये होता है कि हम जब देखते हैं दूसरा रिव्यूअर का पेपर जो मेरे रिव्यू होता है, आप ब्यूटी। सो आई ऑलवेज आस्क स्टूडेंट्स कि आप अगर पेपर भेजना चाहते हो तो पहले रेपुटेड इंटरनेशनल जर्नल में भेजिए। Forget about that whether it will be rejected or accepted. What happens generally once you send to the reputed international journals, say from Springer Verlag or say Elsevier or some other Blackie publication, ये क्या होता है कि या nature.com, उन लोग जो रिव्यू करते हैं ना, थोड़ा रिव्यू करते हैं और जो भी कमेंट्स देते हैं जेन्युइन कमेंट्स देते हैं। फिर आप you will find, yes, I had done some mistakes while I sent the paper for submitted the paper for publications. These were the mistakes which were there. In fact, I should have done in this way. So they used to comment in every aspect, writing से लेके आपका experimental design से लेके result से लेके discussion से लेके every aspects पे comment करते हैं, and that is very important. हम लोग कभी क्या कहते हैं कि हाँ बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, ये करते हैं। आई डोंट थिंक क्रिटिसाइजिंग समबडी इन ए हेल्दी वे, आई अंडरलाइन इन ए हेल्दी वे, अगर हेल्दी वे में किसी को क्रिटिसाइज करें इट्स नॉट बैड, and if a person is true, he doesn't take it into very seriously, he should change himself or herself based on the criticism which he received from others. So criticism in a healthy way is not bad, you use that one to improve yourself. Similarly, research also, if you send to the international journals, you really find that how critically they evaluate the paper and how critically they give you different comments, according to which if you can fulfill their comments, you can solve their comments, then your paper will be accepted. So through that you will learn many things. That is most important. So try to send to first to international journal if you think you have got a substantial data and very innovative data or informative data. You send it to first to the international journals. Don't get afraid of that. And that is what even I used to ask my students. Some of my students, they are now independent researchers. I feel very happy. They can send their paper. क्योंकि यही मेन कॉन्सेप्ट उन लोग को दिया था एंड इट इज वर्किंग। एनीवे, सो स्कोपस इज द डेटाबेस जो कि आपको बहुत सारे लार्जेस्ट डेटाबेस माना जाता है, एंड इट इज जनरली इट इज एन एल्सेवियर्स एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डेटाबेस, दोनों मिलता है, साइटेशन भी एब्स्ट्रैक्शन भी, which was launched in 2004. It covers nearly 36,000 titles, इतना सारे टाइटल्स कवर करता है, एंड अबाउट 11,000 पब्लिशर्स उसको डील करते हैं, 11,000 पब्लिशर्स, एंड विच हैज अबाउट 34,000 peer reviewed journals। 34,000 मतलब 34,000 peer reviewed journals में जितने भी पेपर्स होता है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, टाइल्स मतलब आपका साइंस में डिफरेंट डिफरेंट फील्ड का हो गया किताब की, जो जैसे इवन साइंस में भी फिजिकल साइंस, मेडिकल साइंस, दूसरा बायोलॉजिकल साइंस, अलग अलग फिर टाइटल अलग अलग होता है, ये सब कोई डील करता है और उसका पेपर्स को लेके एक डाटाबेस बनाता है, राइट। एंड ज़्यादातर के जो पीयर रिव्यू टॉप लेवल जर्नल्स होते हैं उसी का ही ये करता है, इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड। किस किस फील्ड में आपको देखिए, ये फील्ड, सॉरी, ये जो फील्ड है बायोलॉजिकल साइंस में, जैसे लाइफ साइंस में फील्ड जिसमें जूलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर साइंस ज़्यादातर के, मेडिकल साइंस सब आ जाता है, सोशल साइंस में भी फिर डील करता है, फिजिकल साइंस को भी डील करता है, हेल्थ साइंस को भी डील करता है, तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में ये डील करता है, राइट। ज़्यादातर का साइंस पे लेकिन डील करता है। सो ये जो आपको डील करता है मतलब आप यू गेट ऑलमोस्ट ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू साइंस पब्लिकेशन और साइंस रिसर्च, एंड this is it is generally uh, it considers mostly the peer reviewed papers। आप लोग कभी कभी सुनते हैं, आपको कहता है peer reviewed पेपर होना चाहिए, नहीं तो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। peer reviewed पेपर अगर नहीं है तो हम लोग करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय peer review? बेसिकली यू आर द peers, राइट, जो पब्लिश करने सबमिट करता है वो peer, एंड उसी फील्ड का उसी टाइप का ही
अगर वर्कर है थोड़ा हायर लेवल का, उनको रिव्यू करने के लिए दिया गया। और ये जो इवोल्यूशन हुआ, मतलब रिव्यू मतलब इवोल्यूशन ऑफ योर वर्क। आप पेपर सबमिट करते हैं, कल जिससे मैं बता रहा था, आप पेपर सबमिट करते हैं, फिर एडिटोरियल ऑफिस में जाता है, फिर चीफ एडिटोरियल असिस्टेंट एडिटर को दे देता है, फिर असिस्टेंट एडिटर क्या करता है, फिर दूसरा एडिटर को एक असाइन कर देता है डिपेंडिंग ऑन द फील्ड ऑफ रिसर्च। क्योंकि सपोज मुझे अगर देना है तो मैं थायराइड पे काम करता हूँ, एंडोक्राइनोलॉजी में काम करता हूँ, या बायोमेडिकल साइंस में करता हूँ, तो मुझे उस तरह का जो पेपर आया है उसको असाइन कर दिया कि आप उसको हैंडल करो। तो फिर एडिटर क्या करता है, वो दूसरा आइदर सब एडिटर को दे, स्टैंड एडिटर को, या खुद डील करता है किसके पास भेजेंगे, रिव्यूअर के पास। सो वो 2 या 3 रिव्यूअर के पास भेजता है। नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ दैट एडिटर कि वो किसके पास भेज रहा है, अच्छा रिव्यूअर के पास भेज रहा है कि ऑर्डिनरी रिव्यूअर। ज्यादातर के जो नया नया जर्नल है, आजकल बहुत सारे जर्नल है, बहुत सारे नया नया जर्नल है, उन लोग इन्वाइट करते हैं, we want to have you as an editor. And I have seen even in 8 different international journals जहाँ मैं हूँ, केवल जैसे लास्ट टाइम मैं बता रहा था काल, दो में केवल मैं इंडियन, ओनली इंडियन, 2 डिफरेंट जर्नल्स, थायरॉइड रिसर्च, थायरोलेटिस एंड स्ट्रोक रिसर्च, केवल इंडिया से मैं हूँ। लेकिन बाकी में तो मैं देखता हूँ एरू गरू सब कुछ भी है, इसका पब्लिकेशन केवल 30 है, किसका 20 है, ऑर्डिनरी जर्नल में फिर भी उनको बना दिए, क्योंकि उनको एडिटर चाहिए। और आजकल एडिटर बनने के लिए उन लोग का कंडीशन कुछ रहता है कि आपको बीच बीच में पेपर सबमिट करना पड़ेगा। भाई वाई, एडिटर अगर आप बना रहे हैं तो मुझे क्यों पेपर सबमिट करना, नहीं तो एडिटर की काम करूंगा ना, हायर लेवल वाला थोड़ी मैं वो थोड़े से। और जिसका इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है, मैं क्यों मेरा पेपर उसमें डालना चाहूंगा। तो कभी कभी आई हैव टू इवन एक जर्नल से मुझे आई टू विदड्रॉ माई एडिटोरियल मेंबर, मैं उसको विदड्रॉ कर लिया, बार बार पीछे पड़ा कि अरे हमको पेपर चाहिए, प्लीज सबमिट वन, विल बी हाईली obliged to you, we are lacking one paper only to publish the first issue, this and that। तो आजकल कोई ना कोई रिव्यूअर बन जाता है, उस तरह का रिव्यूअर बनने का कोई मतलब नहीं। बनना है तो ठीक ढंग से, और फिर रिव्यूअर बनकर ठीक ढंग से रिव्यू कीजिए, क्रिटिकल रिव्यू होना। सो आपकी पीयर रिव्यू होना जरूरी है, एंड इट हेल्प्स पर्टिकुलरली इसमें रेगुलेशन बाय क्वालिफाइड मेंबर्स ऑफ ए प्रोफेशन। ये जनरली जो रिव्यूअर होते हैं क्वालिफाइड मेंबर्स होना चाहिए एक प्रोफेशन में या उसी फील्ड में, विद इन द रिलेवेंट फील्ड। लेकिन कभी कभी मुझे सबसे सरप्राइजिंग लगता है, मैं अभी तक कुछ फील्ड में काम नहीं किया हूँ, सपोज मैं प्री क्लिनिकल स्टडी करता हूँ, लेकिन क्लिनिकल भी मेरे पास आता है, मैं कर भी देता हूँ, लेकिन दे शुड नॉट सेंड इट टू मी। लाइक जो क्लिनिकल वाले साइंटिस्ट है अगर उनको पहले भेजा। कभी कभी मुझे कहते हैं मैं गेस्ट्रोएंटराइटिस में काम नहीं करता, कहते नहीं गेस्ट्रोएंटरोलॉजी का भी आपको पेपर कर पाएंगे क्या, प्लीज डू इट, कैसे राइट। तो उन लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैं एडिटोरियल बोर्ड में हूँ, भेज देते हैं, उनको मिलता नहीं। तो रिलेवेंट फील्ड में एंड स्कोपस डज दैट। ज्यादातर के जर्नल स्कोपस का जितने भी लिस्टेड है ना, उन लोग करते हैं। To maintain the quality of standard, this is very much necessary, or to improve the performance and the productivity credibility। Productive और credibility जो है, productive credibility of a particular journal या particular publisher, only journal का, ये डिपेंड करता है how it is reviewed by well qualified reviewers। ये जरूरी है। जब तक वेल क्वालिफाइड ऑफ द सेम प्रोफेशन ऑफ द सेम फील्ड रिव्यूअर्स नहीं होते हैं, फिर एरुगरु जर्नल कुछ भी पब्लिश होता है, उसका कोई मतलब नहीं। तो मैं आपको बता दूं, एक जर्नल जो है, जर्नल है कैंसर पर, कैंसर ड्रग रिसर्च ऐसे कुछ है, डाटाबेस रिसर्च। वो आजकल क्योंकि नया फील्ड हो गया, कोरोना, कोरोना में कुछ भी कह देते हैं, उसको भी पब्लिश कर देते हैं। देयर इज नो लिंक बिटवीन कोरोना एंड कैंसर। वो एक लाइन खाली बता दिया वो पर्सन कि जो लेडीज कैंसर सॉरी इसमें पीड़ित है, मतलब कोरोना में या कोविड-19 में पीड़ित है, if they are suffering from some cancer, breast cancer or uterine cancer, they are likely to die much earlier as compared to others। एक रिव्यू टाइप की, कुछ नहीं है, कोई रिसर्च नहीं किया, पब्लिश हो गया। क्यों? क्योंकि वो कोरोना का नाम ले लिया, कोविड-19 का नाम ले लिया, चाहे वो कैंसर ड्रग, कोविड पर उसको ये कर दिया। सो थिंग इज दैट, ये जो रिव्यू प्रोसेसिंग जो होता है ना,
For this, editorial board members or the editorial office is also responsible, as well as the reviewers, they are also responsible. Why should the reviewers accept that type of paper if they are not good at that particular field? उनको accept ही नहीं करना चाहिए, करते हैं. So my point is that ये जो आप स्कोपस करता है या जो भी कोई भी ये करता है वो प्रॉपर वे में करना चाहिए. मोस्ट लाइकली स्कोपस तो ठीक ढंग से करता है, लेकिन बहुत सारे जर्नल नया नया जर्नल निकल रहे उन लोग ठीक ढंग से नहीं करते. ओके, सो ये कैसे सेट ऑफ डाटा को किया गया. अब बात ये आता है कि स्कोपस क्या करता है. इट्स द बिगेस्ट और लार्जेस्ट डाटाबेस. हाँ, कि इसमें हम लोग को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है. ज़्यादा तरह का हम लोग पेपर राइटिंग और क्या करना जो आप लोग के लिए. अब ये पीयर रिव्यू होता है, राइट, इन पर्टिकुलर प्रोफेशन और पर्टिकुलर फील्ड में. ये मैं आपको बता दिया. अब बात आता है कि हम लोग ये सब जो स्कोप ये करते हैं, चाहे स्कोपस हो या वेब ऑफ साइंस हो. वेब ऑफ साइंस भी एक अनदर वेबसाइट है. वेब साइंस जनरली सबका करता है, जनरली ज़्यादातर. जैसे कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका वेब ऑफ साइंस जनरली साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, ज़्यादातर के फील्ड में वो भी करता है. इन सपोज 256 डिसिप्लिन, डिफरेंट डिसिप्लिन को सपोर्ट करता है. अनदर डाटाबेस जो एंड साइटेशन इंडेक्सिंग जो करता है, ऑथर्स का भी, टॉपिक का भी, टाइटल का भी, सब्जेक्ट का भी. कीवर्ड देकर आप सर्च करेंगे तो इसमें मिल जाएगा. एब्स्ट्रैक्ट, पीरियडिकल टाइटल, ऑथर्स एड्रेस, पब्लिकेशन ईयर, सब कुछ वो करता है. फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स भी आता है. आप जब फुल टेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे ना, कुछ फ्री आर्टिकल होता है, उसको डाउनलोड करके आप देखेंगे. रिव्यूज को भी करता है, एडिटोरियल्स करता है, या क्रोनोलॉजीज करता है, बहुत सारे. मेरे ख्याल से आपको मिल जाएगा, आप गूगल में सर्च करेंगे मिल जाएगा. एंड अराउंड कवरेज होता है 1900 टू प्रेजेंट. 1900 से मतलब ये शुरू किया है और ये कर रहा है. ठीक है. अब ये जो है रिकॉर्ड जो है उसका भी उसी तरह का बहुत सारे रिकॉर्ड है, 79 मिलियन थिंग्स. उसमें हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन दिस इज अनदर डाटाबेस जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं. बात आता है कि हम लोग ये जो इंडेक्सिंग होता है और पब्लिकेशन जब होता है, पब्लिकेशन होने के बाद जो क्रेडिट हम लोग को मिलता है, ये क्रेडिट कोई भी रिसर्चर को तीन चार तरीके से मिलता है. वन आई टोल्ड कि इम्पैक्ट फैक्टर, किस जर्नल का कितना इम्पैक्ट फैक्टर है. तो आपको कहाँ पब्लिश करना है, अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर वाला जर्नल में पब्लिश करना है. आई एम श्योर सम ऑफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड. अगर बायोलॉजिकल साइंस बैकग्राउंड में आप लोग है या साइंस इंडिया का ऐसा कौन सा जर्नल है आप बता पाएंगे जो कि अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर है और कितना है? कोई आइडिया है? आई एम श्योर सम ऑफ यू आर ऑलरेडी डूइंग रिसर्च और रिसर्च करते हैं. इंडिया में कौन सा जर्नल्स को अच्छा जर्नल्स माना जाता है साइंस में? बिकॉज आई एम कंसर्न अबाउट साइंस और बायोलॉजिकल साइंस. एनी आइडिया है? एक दो है, बहुत ज्यादा नहीं. जर्नल ऑफ जेनेटिक्स, राइट, आईएससी बेंगलोर का है, 2 पॉइंट समथिंग हो गया है. और करेंट साइंस एक है 1 पॉइंट समथिंग. पहले तो बहुत ही था ही नहीं. आईजीबी का भी इस तरह का कुछ जर्नल्स है, बट देयर आर वेरी फ्यू जर्नल्स हु आर रियली हैविंग लिटिल बिट इम्पैक्ट फैक्टर मोर देन 2 और मोर देन 1. बहुत कम. क्योंकि करंट साइंस को इंडिया का नेचर माना जाता है, वो भी आजकल इजीली नहीं लेता है. इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी है, जर्नल ऑफ जेनेटिक्स है, जर्नल ऑफ बायो साइंस एक अच्छा है, वो थोड़ा सा मेंटेन करता है, 2 पॉइंट समथिंग है. अदरवाइज ज्यादातर के जर्नल का लेस देन 1 है इम्पैक्ट फैक्टर. सो उसमें ठीक है, पब्लिश हम लोग कर देते हैं. यूजीसी का इंडेक्सिंग में भी है, यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स है. क्योंकि आजकल क्या है कि आप लोग जब पीएचडी थीसिस सबमिट करेंगे तो यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल में कम से कम एक पेपर पब्लिश होना चाहिए. ये बहुत जरूरी है. कम से कम एक हो सकता है, चेंज हो जाएगा, प्रिफरेबली 2 या कम से कम एक. सो ये जो एक पेपर होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल में होना चाहिए. अदरवाइज यू कैन नॉट सबमिट द थीसिस. हाँ, कि बहुत लोग इसको ध्यान से देखते नहीं है, लेकिन कोई अगर यूनिवर्सिटी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट चलता नहीं है. मैं अभी एक स्टेट यूनिवर्सिटी से आया था कि सर आप इस थीसिस को आपके पास भेज दें क्या? डिप्टी रजिस्ट्रार मुझे फ़ोन किया. मैं कहा कोई बात नहीं, मैं करने में तैयार हूँ और इवेलुएट कर ही दूंगा. जैसे मेरे पास 2 थीसिस पड़ा हुआ है अभी,
लेकिन आप मुझे बताएं कितना पेपर पब्लिश हुआ है उस थीसिस से, और यूजीसी के हिसाब से तो एक चाहिए ही चाहिए। तो उनका पास शायद सुपरवाइजर खड़ा हुआ था, यूजीसी अप्रूव जर्नल में है कि नहीं पब्लिकेशन देखी। देन आफ्टर दैट डिप्टी रजिस्ट्रार सर वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं जो खड़े हुए हैं, वो अभी तो बता नहीं पाएंगे, मैं सर बाद में आपको कॉन्टेक्ट करता हूँ, अगर होगा तो भेजिएगा, नहीं तो मत भेजिए। एंड that John that thesis didn't come to me because I mean in that thesis there was no paper. So इस तरह का भी हो रहा है। तो पीएचडी जो है इस तरह का थोड़ी होना। तो आपका जो पेपर पब्लिश हुआ है क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब इवेलुएट करना है तो इवेलुएट कैसे होगा? आप देखिए, आप ये तो मैं एक दे रहा हूँ, ये मेरे एग्जाम्पल का भी सपोज दे दिया। गूगल साइटेशन आप जानते होंगे, गूगल स्कॉलर विद साइटेशन, गूगल में जाइए, गूगल स्कॉलर विद साइटेशन। आप जीमेल में आपका अकाउंट होना चाहिए, और जीमेल में अकाउंट होते इवन आप अपने बारे में किसी के बारे में ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज फ्रीली भी कुछ कुछ अवेलेबल है। तो यू सिंपली मेंशन गूगल स्कॉलर विद साइटेशन, और उसमें जब जाके किसी पर्सन का आप चाहते हैं उसका साइटेशन फैक्टर देखिए, ठीक है। और साइटेशन फैक्टर में जैसे ये जनरली गूगल स्कॉलर साइटेशन में ये मेंशन रहता है, जैसे कि टोटल साइटेशन आपका कितना है। फॉर एग्जांपल फॉर मी इफ यू कंसीडर आई एम हैविंग ए टोटल साइटेशन ऑफ 5207 सपोज, राइट, ये आपको मिल जाएगा। फिर एक एच इंडेक्स रहता है 39, फॉर एग्जाम्पल वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, और एक आई 10 इंडेक्स है 91। तो ये जो एच इंडेक्स आई 10 इंडेक्स साइटेशन ये होता क्या है? बिकॉज दैट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ रिसर्च एंड हाउ मेनी साइटेशंस यू हैव फ्रॉम योर पब्लिकेशंस। आपका जो पब्लिकेशन या आर्टिकल जो पब्लिश किए हैं उसका साइटेशन फैक्टर कितना है, साइटेशन इंडेक्स कितना है, एच इंडेक्स कितना है, आइटम, और एक जी इंडेक्स भी यूज होता है, लेकिन गूगल स्कॉलर साइटेशन जी इंडेक्स को यूज नहीं करता। और ये टोटल रहता है ओवर, मतलब अभी तक जितना आपका है उसमें कुछ छूट जाता है, इसलिए कि आपका हर कीवर्ड्स नहीं रहता है। आप जब अपना खुलते हैं तो उसमें कीवर्ड्स का भी देना पड़ता है जो कि मेजर मेजर फील्ड का। और फिर सिंस 2016 दैट मीन्स लास्ट 5 ईयर्स, अभी 21 चल रहा है, तो लास्ट 5 ईयर्स का भी कॉलम रहता है। सो कैन यू कैन इवेलुएट whether in last 5 years this guy or this scientist has got some citation or not, he has got H index or not, or I10 index. Now only citation, total citation is not enough. Cite कर देना ठीक है, कोई बात नहीं। I know I have some co-supervisors, they have got good number of citations, but when you look to the H index and I index, I10 index, it is very very less, very less. So H index and I index that determine कि आपका जो साइटेशंस है इन सब का क्वालिटी कितना है और कितना बार हो रहा है, किस तरह का हो रहा है। सो आप 5 साल के अंदर का कितना है वो देख सकते हैं, आप टोटल उनका कितना है। दिस इज वन वे दैट यू कैन फाइंड आउट अ साइंटिस्ट कि whether the scientist is really good academically, particularly from publications point of view in standard journals or not. If citation, total citation or last 5 year citation is not good, if H index is not good, I10 index is very less, then certainly you can consider कि he is not up to the mark or she is not up to the mark. फिर आप सोच सकते हो, तो एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आप साइटेशन इंडेक्स और एच इंडेक्स आई 10 इंडेक्स देख सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि क्या होता है, जैसे कि और उसमें आप जैसे देखिए एक तो एक क्युमुलेटिव आ गया, कितना टोटल साइटेशन है लास्ट 5 ईयर्स में, कितना है राइट कॉलम में दिखा रहा है। इस साइड में जो मैं हाईलाइट किया हूँ वो टोटल, राइट साइड में जो है ये आपका लास्ट 5 ईयर्स, एच इंडेक्स कितना है, आई 10 इंडेक्स कितना है, ठीक है। और आता है इंडिविजुअल अगर देखना है उसी में ही रहता है आपका ये, जिसमें कि लिखा रहता है कि कौन सा आर्टिकल का कितना साइटेशन, और ये छुप गया है आपका ये राइट साइड में कि कितना आपका कौन सा ईयर में पब्लिश हुआ है, राइट। सपोज 295 साइटेशन है इस आर्टिकल का, दिस इज वन आर्टिकल विच इज हैविंग, पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में वो जनरली मेंशन करता है, पहले सबसे ज्यादा साइटेशन है उस आर्टिकल को मेंशन करेगा,
फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन राइट साइड में देगा, कौन सा ईयर में ये पब्लिश हुआ। फिर नेक्स्ट आर्टिकल आपका जो है कितना साइटेशन है टोटल वो बताएगा, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन बताएगा। सो इन दिस वे you will find a downward citation index, that means having maximum in the top and then in the next. ओके, ये टोटल नंबर ऑफ साइटेशन आपको बता रहा है कि कितना है कितना नहीं। ठीक है, अब बात ये आता है कि इसमें से आप दो तीन चीज देख सकते हैं। एक तो टोटल नंबर ऑफ साइटेशन कौन सा ईयर में पब्लिश हो गया वो देख लिए। सो वन कैन से कि मेरा इस साल में इतना साइटेशन है, टोटल कैलकुलेट करके बना सकते हैं। सेकेंड, आप अगर इस पेपर में क्लिक करेंगे तो ये फुल पेपर आपके पास आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट तो पहले आएगा, फुल पेपर या एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा और ये इंडिकेट कर देगा कि आप क्या काम कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो क्या काम कर रहे हैं, क्या है इसमें और क्या इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है वो आपका लगेगा। So looking to this, you are getting the number of citations, in which one it has been cited, what is the title of the paper or article, and who has published. This has been published by these three people, right? And this is of mine, right? And कौन सा जर्नल में हुआ है, कौन सा, और उसको क्लिक करेंगे तो डिटेल्स आपको आ जाएगा इंक्लूडिंग एब्स्ट्रैक्ट। सो यू आर गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम दैट, इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। ये गूगल स्कॉलर जिसे करता है। ठीक है, अब बात आता है कि ये तो आपको इंफॉर्मेशन मिल गया, उसमें से आपको टोटल कितना है। जैसे कि अगर इफ यू गो टू गूगल स्कॉलर, आई थिंक आई एम हैविंग एटलीस्ट 151 citations, articles which have been cited, at least 151 including international investment, right? अब बात आता है कि ये क्या है। बाकी जो बताता है I10 इंडेक्स एक बताता है, H इंडेक्स एक बताता है। These are the two common in Google Scholar sites. I10 इंडेक्स, I10 इंडेक्स होता क्या है? व्हाट इज I10? आपका जो साइटेशन है उसी से इसको निकालते हैं। अब I10 इंडेक्स इस में 91 वहां बताया, दैट मीन्स नंबर ऑफ पब्लिकेशंस व्हिच हैव एटलीस्ट 10 साइटेशंस। दैट मीन्स सो फार कम से कम 10 बार इसको साइट किया गया है बाय डिफरेंट अदर ऑथर्स व्हेन दे सबमिटेड देयर पेपर। जब उन लोग अपना पेपर को सबमिट किए और ये साइट किए मेरे पेपर को, तो मेरा कितना पेपर साइट हुआ? 10 बार कम से कम। सो नंबर ऑफ पब्लिकेशंस विथ एटलीस्ट 10 साइटेशन, जो कि जो पब्लिकेशन जो आर्टिकल कम से कम 10 बार साइटेड हुआ है, 10 साइटेशन जिसका है कम से कम, उसको आप काउंट करें। हो सकता है किसी का 2 ही था, किसी का 3 था, इसीलिए 91 जो है, दैट मीन्स 91 publications of Dr. Carr have been cited at least 10 times, each at least 10 times. ठीक है, 10 बार कम से कम हुआ। बाकी जो मेरा मैं बताया कि 151 या 159 में से कुछ आता है, 151 प्रॉब्लम 151 आता है, मतलब और भी बच गया मेरा जो गूगल स्कॉलर में है। वो कितना बच गया? 9 + 51, 60 पेपर जो बच गया, दे आर हैविंग लेस देन 10 साइटेशंस, राइट? किसी का 6 होगा, किसी का 7 होगा, किसी का, क्योंकि टोटल साइटेशन में आपका आ गया 5000 समथिंग, वो उसमें आ जाएगा। लेकिन सबका 10 साइटेशन नहीं है, केवल 91 का 10 साइटेशन। सो वो इंडिविजुअल, सो उससे आपको आइडिया लगता है कोई इवेल्युएटर जो होगा, तो आप जब आपका रिलेटिव पोटेंशियल जांच करेंगे या आपका रिलेटिव एकेडमिक क्रेडिबिलिटी को जांच करेंगे, तो कहेंगे कि इसका 91 पेपर्स का कम से कम 10-10 बार हो चुका है। किसी का 2 आता है, किसी का 4 आता है, किसी का नहीं भी आता। सो दिस विल qualitatively evaluate the person's ability to publish in standard journals. This is one. Second one is H index. H index जो है, is the largest number of citation H times. और एक्चुअली ये जो होता है ना H इंडेक्स, में उसको और क्लैरिफाई कर देता हूँ, इसमें पूरा दिया है। H इंडेक्स जो है वेब ऑफ साइंस के हिसाब से H इंडेक्स इज क्वालिटी ऑफ रिसर्च, दैट मींस इसमें एक्चुअली जो H इंडेक्स, सपोज H इंडेक्स 39 मेरा, राइट?
That means 39 papers, in the simpler way, let me tell you, 39 articles or papers have been cited at least 39 times. Okay? कम से कम 39, जो मैं दिखा है पहले, यह देखिए ये वाला स्लाइड में क्या बताया, 39, H index is 39, right? Suppose I am having H index 39. Now this 39 H index indicates ordinarily, बाकी तो डिस्क्रिप्शन आपको बाद में बता देंगे, ordinarily that 39 of my articles, obviously out of that 91, out of that 151, 39 of my articles or published papers have been cited highest time, that means at least 39 times. 10 तो नहीं, 10 वाला हो गया 91, उसमें भी अभी आता है, लेकिन 39 कम से कम 39 टाइम्स साइट हो चुकी है. So this ordinarily means 8 index, highest time cited, right? So that is why I have written here, ये जो आपका कि H index, that is the number of papers H with citation number H, दोनों सेम, citation number भी 39, number of papers भी 39. So here example which was given, simple example of a 37 coming down, a scientist with an H index of 37 has 37 papers cited at least 37 times. 37 पेपर 37 बार साइट हो चुका है. In my case which I showed you, 39 पेपर्स कम से कम 39 टाइम्स साइट हो चुका है, कम से कम, नॉट मैक्सिमम, क्योंकि मेरा जो मैक्सिमम साइट हुआ है आपको देखेंगे 200 समथिंग, जो मैं पहला ये बताया था, एक स्लाइड दिखाया था, दिस वन 295 टाइम्स हुआ है. मतलब ये जो H वाला इंडेक्स, इसको भी लिया, इसको भी लिया, इसको भी लिया, क्योंकि ये 295 टाइम्स हो चुका है. सो कम से कम 39 टाइम्स कितना हुए हैं, 39 पेपर्स हुए. सो 39 एंड 39 टाइम्स, दैट बिकम्स योर H इंडेक्स. तो ये जो है H इंडेक्स हम लोग उस तरह से कैलकुलेट करते हैं. और ये आपको एडवांटेज इसमें क्या रहता है, इट अलाउज फॉर डायरेक्ट कंपैरिजंस विद डिसिप्लिन्स, दैट मींस डायरेक्ट कंपैरिजंस ऑफ द साइंटिस्ट इन द सेम डिसिप्लिन. क्योंकि मैं मेरा फील्ड बताया, हमें थायराइड, कैंसर, बायोमेडिकल साइंस या ड्रग डेवलपमेंट, ये जो मेरा बता चुका हूँ, ये बताया. सो कंपेयर अगर करेंगे उस फील्ड का दूसरा साइंटिस्ट से, उसका अगर 39 नहीं है, 32 है, 31 है या ज़्यादा है, तो हो सकता बेटर होगा या उससे कम होगा. दिस द थिंग. सो ये इट अलाउ द डायरेक्ट कंपैरिजंस विद disciplines. Then it measures the quantity and impact by a single value, एक वैल्यू भी आप उसको, एक ही फील्ड, क्योंकि फील्ड तो कॉमन आप दे रहे हैं ना, ये वैल्यू तो उसी फील्ड का अगर आप देखेंगे वो बताए. लेकिन डिसएडवांटेज भी उस पर रहता है, इट डजंट गिव एन एक्यूरेट मेजर्स फॉर अर्ली करियर रिसर्चर्स. क्योंकि जो अर्ली करियर रिसर्चर्स होते हैं, अब एक चीज मैं बता दूं और चीज, सपोज वेरी इंटरेस्टिंगली, कभी कभी हम देखते हैं, जैसे कि हम लोग नेचर डॉट कॉम में दो पेपर किए, जो कि इंडिया से बहुत कम लोग करते हैं, साइंस रिपोर्ट्स की जो है, साइंटिफिक रिपोर्ट, बहुत कम लोग. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो साइटेशन है ना बहुत ही कम है. क्यों, आप बता सकते हैं? अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर, पहले 5 पॉइंट समथिंग था, आजकल 4 पॉइंट समथिंग हो गया, राइट? सो 5 पॉइंट समथिंग या 4 पॉइंट समथिंग, 4.6 फॉर समथिंग, इतना इम्पैक्ट फैक्टर होने का बावजूद उसका साइटेशन बहुत ही कम है. क्या कारण हो सकता बताइए? कारण ये है कि हम उसको पब्लिश किए हैं अभी 2017 में, एंड अनदर वन इज 2020, राइट? तो 2070 का तो कुछ आ रहा है, ये जो पीछे लास्ट ईयर पब्लिश किए हैं उसका अभी तक नहीं आ रहा. सो इफ यू आर पब्लिशिंग रिसेंटली, ऑब्वियसली many will not follow, many will not see, so your citation for that particular article will be less. वो जितना टाइम होगा तब ना लोग उसको पढ़ेंगे और साइट करेंगे और एग्जाम्पल देंगे आपका जो डिस्कशन में, तो उसका कम होगा. सो जरूरी नहीं है कि a journal in which you have published, which has got a very good impact factor, that is going to give you good citation factor. No, not necessarily. If your work is good and many other people are working, they are
consulting your work, then they used to cite your paper, आपका पेपर को साइट करेंगे। लेकिन ये 1 साल से अगर हुआ है, 2 साल से हुआ है तो ऑब्वियसली साइट नहीं करेंगे। दिस इज वन। सेकंड थिंग, आप अगर जो पेपर पब्लिश किए ऑर्डिनरी जर्नल में दिए हैं, प्रीडेटरी जर्नल्स जो कि इंडेक्सिंग नहीं होता है, उन लोग उसको सर्च करके ढूंढ के पबमेड में ना आता है, ना आपका कोई दूसरा वेबसाइट में आता है, साइंटिफिक डाटाबेस में आता है। जब साइंटिफिक डाटाबेस में इंडेक्सिंग नहीं होगा तो फिर तो आप जब लिटरेचर सर्च करेंगे उस पेपर को तो पढ़ नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग पहले क्या करते थे कि इवन हम लोग भी जब रिसर्च करता था हम लोग थेसिस जाके लाइब्रेरी में देखते थे। लेट मी टेल यू, थेसिस का बहुत सारा काम अवार्ड हो जाता फिर भी पब्लिश नहीं होता। मैं आपको बताऊँ, पब्लिश होता ही नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स आर मोस्टली इंटरेस्टेड फॉर अवार्ड और डिग्री, नॉट फॉर पब्लिकेशन। And even the supervisors, even at present, let me tell you, many supervisors they feel proud to say that I have produced 35 or 25 PhD students. But if you ask them, they will say, I'm sorry, मेरे पास तो केवल 10 ही पेपर है कि 8 ही पेपर है। Sometimes the number of PhDs outnumber the number of quality papers in standard journals. पहले जमाने में आप देखते ज्यादातर पुराने प्रोफेसर स्टेट यूनिवर्सिटी का 35, 36, 40 PhD scholars, लेकिन if you go through their citation index, बहुत ही कम, बहुत ही कम। Go to the colleges, you will find in college many college professors they have produced good number of PhD students, but you look to their scientific contribution in terms of indexing or in terms of age factor, age index or IPM index or total citation, they are far far less. Sometimes I don't find the name of some professors in the database। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो सर हेल्प लेने के लिए आता है, आई डोंट माइंड हेल्पिंग देम, एंड सर कहते हैं नहीं सर मेरे जो कॉलेज में है प्रोफेसर बहुत ही सर एक्टिव है, बहुत एक्टिव काम करते हैं, बहुत ही अच्छा रिसर्चर है। मेरे क्या नाम है, नहीं ये नाम है, अच्छा अच्छा आई नहीं, चलो सर्च करो देखो। उनको पता ही नहीं है सर्च कैसे करते हैं। तो सर्च जब किया जाता है प्रैक्टिकली यू विल फाइंड, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट वन वाइस चांसलर who has been who was chosen as vice chancellor, who served as vice chancellor, not at present of course, who was a vice chancellor in my field I am talking। स्टूडेंट्स आए सर नहीं है बहुत अच्छा है दिस एंड दैट, ठीक है उनका सर्च करो कितना है, पबमेड में उनका हार्डली 8-10 पेपर आता है। I should not say प्रोफेसर रिटायर्ड कर गए who was dean of the science faculty in our university, who was senior professor, who was EC member, right? Who has retired before a couple of years. If you, when I go through his publications in PubMed, साइंस का ही है, PubMed में हार्डली एक ही पेपर आता है, एक ओनली वन। गूगल स्कॉलर साइटेशन में कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। हो गया, चार पेपर, चार ना 5 स्टूडेंट प्रोड्यूस किए हैं और दूसरे का हेल्प लेके को सुपरवाइजर बनकर बन गए, और कुछ इसका साथ नाम जोड़ के उसके साथ नाम जोड़ के 5 पेपर चाहिए प्रोफेसर बनने के लिए, 5 पेपर 5 साल लास्ट, एक बार रिजेक्ट हुए तो दूसरा बार बन गए, 5 पेपर दिखा दिए प्रोफेसर बन गए। एंड वंस ही बिकम प्रोफेसर ही बिकम डीन, क्योंकि यहाँ तो डीन को बहुत सारे यूनिवर्सिटी में डीन शुड बी साइंटिफिक लीडर, साइंटिफिकली प्रूवन रिसर्चर होना चाहिए। इंडियन कंडीशन में डीन थोड़ी से बनते हैं, इंडियन कंडीशन मोस्ट ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी आपका सीनियरिटी बेसिस पे आपको डीन देते हैं। एंड वी द टीचर्स आल्सो वी एक्सेप्ट एवरीथिंग, वी डोंट आर्ग्यू फॉर दैट, वी डोंट फाइट फॉर दैट। तो क्यों, एक लेक्चरर भी डीन बन सकता है मेरे के हिसाब से, इफ ही इज हैविंग मोर पब्लिकेशंस और गुड नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, व्हाई कांट ए लेक्चरर बिकम डीन? ये तो साइंटिफिक पोस्ट है, डीन ऑफ साइंस, ठीक है, मिनिमम आप एक्सपीरियंस देख लीजिए 10 साल का हो, दैट इज गुड एनफ। Why it should be given on the seniority basis? बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आजकल डीनशिप जो देते हैं, बिग थिंग। यू गो टू बीएचयू, डीन डज एवरीथिंग, आपका सिलेक्शन से लेके डीन का इंपॉर्टेंस हर जगह में रहता है। स्टेट यूनिवर्सिटीज में नहीं है, सीनियर मोस्ट हो चाहे किसी भी तरह से प्रोफेसर बन गए हो, आपको डीन बना दिया जाएगा एंड वी गेट क्रेडिट कि आई वाज द डीन, आई एम द डीन। बाकी मैं भी लिखता हूँ मेरे ईयर में मैं डीन था, लेकिन मैं कह रहा हूँ चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडीज, इसको ही बना देते हैं।
सरप्राइजिंगली आप देखेंगे कुछ कुछ में तो हम लोग का यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी हेड है, ये भी होता है। तो ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन साइंटिफिक मेजरमेंट जब आप करते हैं आप उनका डिटेल्स देखिए, साइटेशन इंडेक्स देखिए, इम्पैक्ट फैक्टर कौन से दोनों में, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट फैक्टर आजकल देखते हैं, सम इन सम सिलेक्शन दे सी द क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट फैक्टर। व्हाट इज द क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट फैक्टर? आपका जितना जर्नल पब्लिश हुआ है, सपोज 5 साल का क्यूमुलेटिव देख रहे हैं, तो 5 साल में जितना जर्नल में आप पब्लिश किए उसका जो इम्पैक्ट फैक्टर है उसको जोड़िए और टोटल कीजिए आपका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट फैक्टर कितना। आजकल यूजीसी भी थोड़ा बहुत देख रहा है कुछ कुछ सिलेक्शन में, लेकिन पहले कुछ नहीं देखता था। So cumulative impact factor that counts. Now, if you are having a publications in good journal having impact factor more than 5 or at least 5 or 10, right? तो आपका cumulative impact factor में ये 10 बाकी दूसरे का 10 या 15 का बराबर हो गया। उनका भले 15 पेपर है, आपका एक पेपर ही 10 cumulative impact factor दे दिया, impact factor दिया, बाकी बाकी का जोड़ देंगे तो आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। So it is very important to publish in a highly reputed journal or as far as possible. Of course, depending on your work, आप उसको publish करेंगे, but always want to try to publish in a high impact factor journal, and that helps. That helps. अगर proper selection होता है ना, वो help करता है। अगर आपकी I am not sure whether in all cases the proper selection is done in India, but बाहर को जाइए, बाहर में कुछ कुछ कंट्रीज में proper selection होता है, वहाँ देखते हैं हर चीज। Okay, let's see. Go ahead. So disadvantage क्या है? It doesn't give an accurate measure for early career researchers. जो early career researchers होते हैं, भले उनका publication अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर में है, लेकिन एच इंडेक्स आता नहीं है क्योंकि वो तो केवल 5 साल से अभी करियर शुरू किया। जैसे मैं बताया, जो पेपर आपका अभी अभी पब्लिश हुआ है या 2 साल पहले है, उसको साइटेशन मिलेगा ही नहीं, तो कहाँ से उनको इतने बार साइटेशन देखेंगे? कोई नहीं पाएगा। तो एक डिसमिल इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ओनली आर्टिकल्स दैट आर इंडेक्स्ड इन वेब ऑफ साइंस। केवल आर्टिकल जो कि वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स्ड है उसी का ही कैलकुलेट करते हैं, राइट? सो रिसर्चर्स पब्लिशेस एन आर्टिकल इन अ जर्नल दैट इज नॉट इंडेक्स्ड, उसका तो काउंट होगा ही नहीं। सो ये कुछ कुछ देखिए एडवांटेज रहता है, लेकिन मेजर एडवांटेजेस ही रहता है, डिसएडवांटेजेस कम रहता है, पर्टिकुलरली फॉर ए गुड रिसर्चर्स एंड सीनियर रिसर्चर्स के लिए कम से कम एच इंडेक्स देखना जरूरी है। सीनियर दोज हु एटलीस्ट वर्क फॉर 10 years और 10 years का इवेल्युएट किया जाए उनको देखना चाहिए, ठीक है? सो दिस ये जो टूल्स है, दिस ए गुड मेजरमेंट इंडेक्स है। एच इंडेक्स जो माना जाता है गुड मेजरिंग इंडेक्स एच इंडेक्स। I10 index जो है, it is simpler one. This is calculated very simply, as I told earlier, the number of publications which has at least 10 citations. अगर आपका 10 साइटेशन भी है तो उसको I10 में एक माना गया। उसी तरह का आपका जितना साइटेशन है जो कि 10-10 करके है, जितना पब्लिकेशन है जो कि कम से कम 10 साइटेशन है, उसको आप I10 में काउंट करें। That is why in my case, which I showed you, 91 means 91 publications we are having 10 index at least, 10 citations at least, right? 10. So ये उसी हिसाब से उसको कैलकुलेट करते हैं। अब मैं एच इंडेक्स का बता दिया। आई ये और एक I10 इंडेक्स का, ये जो मैं बता रहा हूँ, इट इज क्रिएटेड बाय बेसिकली गूगल स्कॉलर। आपको बाकी जो ये है ना डाटाबेस उसमें हो सकता नहीं मिलेंगे, लेकिन गूगल स्कॉलर जो देता है I10 देता है। इट इज द नंबर ऑफ पब्लिकेशन दैट एटलीस्ट 10 साइटेशन, एटलीस्ट विथ 10 साइटेशन वाला को काउंट किया। इट इज द मेन व्हिच you should use. And the very simple measures is only used by Google Scholar and is the way to help gauge the or measure the productivity of a scholar. मेजर करता है, ये भी एक मेजरमेंट है। एडवांटेज क्या है? वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टू कैलकुलेट। आप इतना कॉम्प्लिकेटेड, जैसे कि एच इंडेक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, आई इंडेक्स कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। 10 साइटेशन है उसको एक आई इंडेक्स में मान लिए, और दूसरा पेपर का 10 साइटेशन है उसको 2 मान लिए, दूसरा तीसरा पेपर का 10 साइटेशन को 3 मान लिए, उसी तरह का करके 90-91 जो भी। लेकिन इसमें भी बहुत लोगों का कम रहता है, राइट? एंड माई साइटेशन इन गूगल स्कॉलर इज फ्री एंड इजी टू यूज। जैसे कि
कुछ कुछ जो साइट्स होते हैं जो कि पेड साइट्स होते हैं, बट दिस इज फ्री एंड यू कैन इजीली। सो आई फील जब हम लोग का कंपैरेटिव इवैल्यूएशन होता है ना एकेडमिशियंस का, एटलीस्ट ये I10 इंडेक्स को देखें, टोटल साइटेशन I10 जो कि गूगल स्कॉलर विद साइटेशन में देता है, कम से कम वो तो देख लें, उसमें से बहुत सारी चीज मिल जाए, बहुत सारी चीज, एंड बायसनेस भी हट जाए। जो बायसनेस की ही इज द बेस्ट साइंटिस्ट, ही इज नॉट अप टू द मार्क, इसको नहीं लेंगे उसको लेंगे, ये अगर इंटरव्यू में ये देखा जाए ना, उसी बेसिस पे किया जाए स्क्रूटिनाइजेशन, दैट इज द बेस्ट थिंग, आई फील इज द बेस्ट थिंग, उसको देख लीजिए। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज ओनली यूज्ड बाय गूगल स्कॉलर, केवल गूगल स्कॉलर में ही मिलता है, बाकी में I10 का इतना यूज नहीं होता है, बट वन कैन स्टडी कर सकता है, ओके, गूगल स्कॉलर थ्रू से जाके वो कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया H इंडेक्स, एंड देन I10 इंडेक्स, देन आपका और एक इंडेक्स जो रेयरली यूज होता है तो रिसेंटली शुरू किया है, G इंडेक्स जो यूज होता है, इट इज लिटिल डिफरेंट विच हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 2006 ओनली, और ये ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया आपको ये होना चाहिए। दिस इज कैलकुलेटेड गिवन सेट ऑफ आर्टिकल्स रैंक्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर, ये मिनिमम 2 होना चाहिए कम से कम। और ये जो है जी इंडेक्स जो है, ये जी इंडेक्स इट्स अ यूनिक टाइप ऑफ इंडेक्स जिसको कि लार्जेस्ट नंबर सच दैट, ये जो लिखा जी इंडेक्स इज कैलकुलेटेड गिवन ए सेट ऑफ आर्टिकल्स रैंक इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, कितनी कम कम में उसको ऑर्डर में साइट हो चुका, और एटलीस्ट उसमें ये मार्क कीजिए, एटलीस्ट इट शुड रिसीव टू, ये देखना, टू और मोर citations, at least 2 or more citations, राइट। सो ये थोड़ा सा एडवांटेज इसीलिए माना जाता है कि कम से कम 2 साइटेशन को भी आप कैलकुलेट करके आप एक बता रहे हैं कि जी इंडेक्स इतना है। सो जो न्यू वर्कर है उनके लिए कभी कभी ये हेल्पफुल रहता है, काम करता है, लेकिन दिस इज वेरी रेयरली यूज, वेरी रेयरली यूज, क्योंकि ये हम लोग का ज़्यादातर है कि जैसे गूगल स्कॉलर में H इंडेक्स और I10 इंडेक्स। So roughly, I don't want to emphasize more on this, but I'll certainly emphasize कि one should have good H index and one should have good I index, right? I10 index अगर उतना भी है तो that is good. So ये अगर आपका हो जाता है तो लास्टली मैं जो कहना चाहता हूँ आपको, बिफोर आई स्विच ओवर टू अनदर टॉपिक, स्लाइड टॉपिक जो कि डॉक्टर द्विवेदी मुझे बताए थे, आई वाज थिंकिंग मुझे यही केवल डील करना पड़ेगा, बट पब्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दिस इज आई थिंक दिस बैच इज अ डिफरेंट बैच, यू कैन हैव अ डिस्कशन ओनली, मैं स्लाइड नहीं देखा क्या, इसे ही बता दूंगा कि आपकी जो पब्लिकेशन से ब्रीफली मैं कहना चाहता हूँ कि ये क्वालिटी पब्लिकेशन होना चाहिए। दैट मीन्स क्वालिटी पर योर वर्क शुड बी गुड, कैसे अच्छा होगा वो मैं बताऊंगा बाद में, एंड इट शुड बी पब्लिश इन ए रेपुटेड जर्नल विच इज इंडेक्स जर्नल एंड पीयर रिव्यू जर्नल, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप, जैसे काल में बताया था, अगर करना है तो ठीक ढंग से करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, एग्जैक्टली। अगर पेपर पब्लिश करना है तो कम से कम स्टैंडर्ड जर्नल में पब्लिश करेंगे जिसका कि इम्पैक्ट फैक्टर हो, जिसकी वजह से कि बाद में हम लोग को साइटेशन मिले, और साइटेशन की बदौलत हम लोग को H इंडेक्स भी मिलेगा, I10 इंडेक्स भी मिलेगा, जी इंडेक्स तो मिलेगा नहीं। एक तो ये, दूसरा, कौन साइट करेगा, अगर वो आपके काम में इंटरेस्टेड है, और आपकी काम रियली अच्छा है, और आपकी काम इंडेक्स्ड है डाटाबेस में। जब तक डाटाबेस में इंडेक्स नहीं होगा आपका काम साइट होगा ही नहीं, राइट। अब इट्स नॉट दैट इजी, इतना इजी नहीं कि अच्छा जर्नल में आजकल पब्लिश करना, क्योंकि बहुत सारे बायसनेस भी रहता है। सेकंड, आजकल बहुत सारे जर्नल पैसा भी मांग रहे हैं, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। देयर आर सम फ्री जर्नल्स जो कि पैसा बिल्कुल नहीं मांगते हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं। आप अगर मुझे पूछेंगे, मैं तो हार्डली 1-2 जर्नल को छोड़कर किसी में भी मैं पैसा नहीं दिया हूँ, लेकिन अच्छी जर्नल में पब्लिश हो चुका है। फिर भी अगर आप कोशिश करेंगे, आई एम श्योर वन कैन पब्लिश इन वेरी गुड जर्नल। ओनली थिंग इट नीड्स योर इंटरेस्ट, योर सुपरवाइजर्स इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ योर गाइड, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक दोनों नहीं होंगे, इनिशियल लेवल में आप नहीं कर पाएंगे।
हाँ कि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, आपको हेल्प मिल जाएगा, बहुत लोग हेल्प करने के लिए रहेंगे, तैयार हैं, कर भी देंगे, अच्छे लोग भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, यू कैन पब्लिश इन वेरी गुड जर्नल। कोई जरूरी नहीं कि खुद भी नहीं कर सकते। देयर वाज ए प्रोफेसर इन BHU आई नो लॉन्ग बैक, आजकल नहीं, मेरे टाइम में, who had published in that time good number of papers without being PhD. Even he was not a PhD holder, but he could publish. And during that time, UGC had allowed that if one is having more than 10 publications, one can even take the student, PhD students. So just imagine, he was not himself a PhD holder, but he was able to guide. अब ये नहीं है, आपको अभी जिसको भी गाइड बनना है या सुपरवाइजर बनना है या मेंटर बनना है, यू हैव टू बी PhD डिग्री। एंड PhD डिग्री के लिए आपको PhD जब करेंगे एक अच्छा सुपरवाइजर की जरूरत है। नॉट ओनली दैट, यू नीड टू हैव ए फेलोशिप। साइंस में पर्टिकुलरली बिना फेलोशिप का काम नहीं होता, इवन इन ह्यूमैनिटीज बिना फेलोशिप का काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट नीड्स मनी, ग्रांट्स लाइक दिस। थर्ड, आपका एटमॉस्फेयर अच्छा होना जरूरी है जहाँ काम करेंगे। दैट मीन्स द इंस्टीट्यूट या लेबोरेटरी शुड बी गुड वन, सो दैट यू गेट द एटमॉस्फेयर टू वर्क। जहाँ काम नहीं होता, आप अगर घुस जाएंगे, खाली टाइम पास होता है, कुछ भी नहीं होता। बट nothing is impossible. You can be a very good researcher if you try, if you are genuinely interested. थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा सर्वे करना पड़ा, फिर आपको जाना। अब इसमें मैं ये वाला जो इंडेक्सिंग सिस्टम, मैट्रिक्स यूज करना, ये वाला खत्म कर रहा हूँ। फिर आपको अगर पब्लिकेशंस के बारे में कुछ पूछना है, हाउ टू पब्लिश, जो कि मैं एक क्लास लेता हूँ, आप अगर कहेंगे तो फिर मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा और यू कैन हैव ए डिस्कशन। आप चाहे तो मैं बाद में स्लाइड्स दिखाऊंगा, अभी तो मैं केवल चर्चा करूँ क्योंकि आपका टॉपिक जो मुझे दिया गया था इसी में से था। बट फिर भी यू कैन हैव ए डिस्कशन। अभी इस फील्ड में अगर आप लोग को कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। फिर we have time at least 15-20 minutes, we can have a discussion on how to publish paper in good journals, what are the different criteria, या आपका अगर डिजर्टेशन बनना है, क्योंकि some of you are from PG background, those who will be doing some project work also, तो उस पर फिर बात करेंगे किस तरह का करना। ठीक है, so thank you for very much. Now you are most welcome to clarify your doubt or anything. सर जैसे तो आप आप बता रहे हैं कि मेंटर को चूज करने के लिए पीएचडी के लिए, जी सर तो जैसे हम उनके पब्लिकेशन देखते हैं तो हमको उनके टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशंस देखने चाहिए या फिर रिसेंट जो उनका रिसेंट वर्क है उसको उसके नहीं, बेसिस पर अपना मेंटर केवल चूज करना टोटल चाहिए। नंबर दिखने का नहीं है। हाँ कि अच्छा डाटाबेस जो है, सपोज आप साइंस की है, जैसे मैं यस pubmed.com का बात कर रहा हूँ, NCBI का, वहाँ जाएंगे तो केवल अच्छा पेपर ही आएगा, सब नहीं आएगा। ठीक है ना, अच्छा अच्छा पेपर जो है और क्वालिटी वो आएगा। सर तो एक तो टोटल वो है। नंबर ऑफ यस सर हाँ, नहीं नहीं टोटल सर नंबर भी देखिए, मैं मेरा कहना कि इट इज नॉट द नंबर दैट शुड बी काउंटेड or that should be given priority or importance. It is the quality of paper published in which type of journals having how much impact factor, that is mostly। तो आप देखेंगे कि इनका जो पब्लिश हुआ है पेपर अच्छे जर्नल में हुआ है कि नहीं हुआ, और अगर अच्छे जर्नल में हुआ होगा तो फिर ठीक है। अगर ऑर्डिनरी एरुगुरु जर्नल में टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशन से अच्छा है, कोई मतलब नहीं, एरुगुरु जर्नल में कोई मतलब नहीं, राइट। बहुत सारे हैं इंडियन पब्लिक दोनों इंडियन वर्कर्स जो कि इंडियन जर्नल्स में काफी नंबर ऑफ पब्लिकेशन है, लेकिन इंटरनेशनल में बहुत ही कम है, अच्छी सर जर्नल जैसे में बहुत। दोनों का इंटरनेशनल में है अगर और अच्छी पब्लिकेशन है बट एक बहुत टाइम टाइम बाद पब्लिश करते हैं और एक के रिसेंट आ रहे हैं। यस, इसीलिए जो मैं लास्ट में जो दिया था ना गूगल स्कॉलर में, लास्ट 5 ईयर्स, मेन यस थिंग सर आप देखिए लास्ट 5 ईयर्स। पहले तो इवन हम लोग का रूल्स में भी था यूनिवर्सिटी में कि वन कैन बिकम सुपरवाइजर और गाइड फॉर PhD और इवन फॉर MPhil if one is having at least 5 papers in last 5 years। ठीक है ना, लास्ट 5 साल में कम से कम 5 पेपर होना चाहिए। फिर बाद में कर दिया कि लास्ट 5 ईयर्स में कम से कम 2 पेपर होना चाहिए। उस केस में देखते हैं तो लेट मी टेल यू, कुछ प्रोफेसर उसमें भी क्वालिफाई नहीं करते, पहले PhD और PhD के बाद कुछ शुरू शुरू में काम किया, उसके बाद छोड़ दिए। दैट मीन्स ही डिडंट हैव एनी इंटरेस्ट, सो डिसकंटिन्यूड। एंड नाउ फिर उनका प्रमोशन का कुछ ड्यू आया होगा, फिर थोड़ा जुट गया कि चलो भाई मैं थोड़ा रिसर्च करूँ, फिर किया। दैट इज नॉट गोइंग टू सर्व। सो कंटिन्यूअस रिसर्च अगर करना है तो दैट विल
मतलब कर रहे हैं तो पब्लिश होगा कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली अगर पब्लिश हो रहा है तो लास्ट 5 ईयर्स में कम से कम अच्छा जो पब्लिश होगा, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो आप लोग को जब चुनेंगे ना, लास्ट 5 ईयर्स का कम से कम देखिए कि कितना पेपर है, कि है कि नहीं। अगर लास्ट 5 ईयर्स में नहीं किया है कुछ, यूजीसी का क्या कर दिया है कि एनीबडी हु इज हैविंग एटलीस्ट 2 पेपर्स, वेदर इट इज ड्यूरिंग पीएचडी और आफ्टर पीएचडी, उनको सुपरवाइजरशिप दे दिया जाएगा, गाइड। सो मेनी हैव बिकम गाइड। और उसमें कुछ पॉलिटिक्स जरूर होगा, आई एम श्योर कुछ पॉलिटिक्स है। पहले ये नहीं था। पहले क्या था कि आप पीएचडी हैं, परमानेंट फैकल्टी तो है, पीएचडी हैं, लेकिन पोस्ट डॉक्टरल पीएचडी के बाद केवल आपका 5 कम से कम पब्लिकेशन होना चाहिए आफ्टर पीएचडी। क्या होता है कि पीएचडी के टाइम में ज्यादातर का सुपरवाइजर का हेल्प रहता है, तो सुपरवाइजर हेल्प करता है, इसलिए आपके नाम पर पब्लिश हो गया। और कुछ सुपरवाइजर होते हैं मेरे रिसर्च में, मैं तो जनरली स्टूडेंट का नाम पहले ही रखता हूँ, फर्स्ट ऑथरशिप, इवन फर्स्ट ऑथरशिप में भी दे देता हूँ, ठीक है ना। अब आपका पब्लिकेशन हो गया पीएचडी के अंदर, बट आफ्टर पीएचडी यू बिकम एन इंडिपेंडेंट रिसर्चर, ठीक है ना। जब आप इंडिपेंडेंट रिसर्चर बनते हैं तब ना आप इंडिपेंडेंटली रिसर्च करा भी पाएंगे। पहले तो डिपेंडेंट थे आपका सुपरवाइजर पे। सो आफ्टर पीएचडी लास्ट 5 ईयर्स में अगर कुछ किया है, या लास्ट चलिए 3 साल में भी कुछ किया है, क्योंकि आजकल वो 5 ईयर्स वाला कंसेप्ट हटा दिए। आफ्टर पीएचडी अगर कुछ कर रहा है इंडिपेंडेंटली, तब तो ठीक है, वो कुछ करा देगा आपको काम। अगर आफ्टर पीएचडी नहीं करा, बिफोर पीएचडी का ही केवल है, तब तो गई गुजरा मान लीजिए, उसको तो कंसिडर ही नहीं करना चाहिए। स्टैंडर्ड जर्नल में अगर नहीं है तो भी नहीं लेना चाहिए, और अगर उनका अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर में जर्नल में नहीं है तब भी नहीं मानना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसका रिसर्च आउटपुट रेगुलरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छा जर्नल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड देन पर्टिकुलरली फॉर गर्ल स्टूडेंट थोड़ा सा सर्वे कर लीजिए उनका लेबोरेटरी में जो ऑलरेडी पास आउट थे या ऑलरेडी पीएचडी कर चुके हैं, कि इनका नेचर पूछिए। वन सुपरवाइजर आई नो एटलीस्ट, देयर आर मेनी, आप पेपर में भी आता आप देखे होंगे, सुपरवाइजर एज ए वर्कर बहुत अच्छा है, अच्छा पब्लिश किया है, लेकिन एज ए पर्सन ही वॉज ए हाईली ट्रबलसम पर्सन। उनकी केस में एक सुपरवाइजर, एक प्रोफेसर था आई नो, जो कि रिटायर भी कर गए। कम से कम वो 20-25 जरूर पीएचडी प्रोड्यूस किए होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम 15 कम से कम उनसे उनसे छोड़ के जा चुके हैं आफ्टर 2 ईयर्स और 3 ईयर्स। तो आप अगर देखेंगे कि उनका अंडर जो रजिस्टर्ड हुए थे छोड़ के चले गए एटलीस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, नॉट बिफोर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद छोड़ के चले गए, मतलब उनके पास कुछ ना कुछ डिमेरिट्स जरूर है। मे बी ही इज अ गुड वर्कर, हिज फील्ड ऑफ रिसर्च इज वेरी गुड, बट वो थोड़ा हरासिंग होगा, क्योंकि बहुत सारा हरास करते हैं। फिर उसको तो चुनिए मत, क्योंकि लाइफ आपका पूरा स्पॉइल हो जाएगा। क्योंकि रिसर्च ऐसे कीजिए ना, आप जब ज्वाइन करते हो तो आप दिमाग में रखिए कि 4 साल 5 साल के लिए आप उसके साथ रह रहे हैं, उसका मेंबर बन के। अगर वो अच्छा नहीं है तो मुश्किल है, आपको उनको झेलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, और कुछ पूछना चाहते हैं? सर सर जैसे कोलैबोरेट वर्क भी करते हैं कुछ फॉरेन साइंटिस्ट के साथ मिलकर के, तो सर ये सिर्फ इसलिए कि हमारा अच्छे जर्नल में पब्लिश हो तो उनकी लैब का नाम लेकर, या फिर वो काम कर रहे हैं और गेस्ट मतलब ऑथर के नाम पर इनका नाम दे रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, अभी जो है ना कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल साइंटिस्ट दो कारण से होता है, मैं आपको बताऊँ। एक तो होता है जो लोग विदेश गए थे किसी पोस्ट पर, सपोज मैं कॉमनवेल्थ फेलोशिप में बाहर गया था, ठीक है। अब मैं कॉमनवेल्थ फेलोशिप में वहाँ 6 महीने यूके में रहा, तो मैं मेरा जो बॉस वहाँ था उनके साथ मेरा एक टाई अप हो गया कि हाँ, अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो हम लोग कुछ भी काम करते हैं मेरा इंडिया में, तो मैं उनका थोड़ा सा हेल्प लेता हूँ, आप फाइनली कर दो, उसको थोड़ा देख दाख दो ठीक ठाक है कि नहीं, तो फिर वापस हाँ कि मैं किया नहीं, मेरा सब इंडिपेंडेंट चलता है इधर पे। लेकिन लोग ऐसे करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनका सबका नाम रह जाता है 4-5 6, और आपका नाम रह जाता है, पब्लिकेशन एक हो जाता है। दिस इज वन रीजन। सेकेंड रीजन क्या होता है, कुछ लोग जैसे आप बोले जानबूझकर उनको कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि एक इम्पैक्ट होता है कि अच्छा बाहर का काम हुआ है, ये बाहर का साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व है, तो अच्छा वर्क हुआ होगा, बायसनेस, तो कभी कभी वो भी पब्लिश हो जाता है। हाँ कि इतना आसानी नहीं है, लेकिन हो जाता है। सेकेंड। थर्ड, आजकल नया ट्रेंड एक आ रहा है, आजकल ज्यादा तरह के जर्नल, इवन एलसी है के भी जर्नल, इन लोग पैसा मांगते हैं, समझ रहे हैं?
और पैसे की जब मांग रहे हैं ना, ये 1-2 हजार वाला नहीं है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या 50,000। अब वी दी इंडियंस वी कैन नॉट पे फ्रॉम आवर पॉकेट, और नोर वी वांट टू पे फ्रॉम आवर पॉकेट। मुझे बताए कितने लोग पॉकेट से खर्च करके रिसर्च कर रहे हैं, कितने सुपरवाइजर कर रहे हैं या करा रहे हैं, कोई कराता है? और ग्रांट इतना आसानी से हम लोग को इंडियन फंडिंग एजेंसी से नहीं मिलता, वहाँ भी धंधली कुछ होता है, गड़बड़ होता है, बायसनेस होता है। तो इन लोग क्या करते हैं, उनका कोई कॉन्टैक्ट अगर है या कॉन्टैक्ट बना लेते हैं थ्रू ईमेल, थ्रू फोन, कि ठीक है मैं ये काम किया हूँ, आप आपके साथ इसको पब्लिश करना है, ऑल दैट यू हैव टू डू इज यू पे दी प्रोसेसिंग फी। आपको प्रोसेसिंग फी पे कीजिए, क्योंकि उनका तो डॉलर और ग्रांट्स उनके पास बहुत रहता है। सो जो 1 लाख बात आया, 1 लाख कितने डॉलर, हार्डली $300 हो गए। तो उन लोग को देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो 300 या $400 दे के अपना नाम उसमें इंक्लूड कर देते हैं, काम आपका है, आप खुश हो जाते हैं कि मेरा पब्लिश हो गया, तो नाम भी हो गया। तो ये भी एक सिस्टम चल रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन से हो रहा है, बट जरूरी नहीं है कि आप उनके साथ कोलाबरेट करेंगे तभी जाकर पब्लिश होगा अच्छे। इंडिया में भी रह के भी कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट का साइंटिस्ट काफ़ी अच्छा साइंटिस्ट है। हाँ कि यूनिवर्सिटीज़ में और इवन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आई एम टॉकिंग, यू जस्ट कंपेयर the central universities professors database or the citation, you will find even in state university few are doing very well, very well, जरूरी नहीं। लेकिन चाहे इंडिया में हो, चाहे बाहर में हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी, अब वो कॉन्सेप्ट गया कि मैं एक प्रोफेसर या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के अंडर करूंगा तो मुझे जॉब मिल ही जाएगा, वो नहीं है। आप अगर अच्छा काम करेंगे तब जाके जॉब मिलने का चांसेस है, चांसेस, गारंटी नहीं है। क्योंकि एज सच इन रिसर्च बहुत सारे लोग बैठे पीएचडी करने के बाद भी अच्छा अच्छा जो कॉन्टेक्चुअल लेक्चर को जो प्रोफेसर होंगे तो उनके पास वेल एस्टेब्लिश्ड उनकी लैब होगी, और जो असिस्टेंट या एसोसिएट है उनकी लैब उतनी अच्छी नहीं होगी, उतना उनके पास अच्छा ग्रांट भी नहीं है। नहीं, उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन आजकल नया कॉन्सेप्ट आ गया, बीएसटी, डीबीटी, आईसीआर, सीएसआईआर, ये सब ज्यादा तरह के ना यंग लोग को ज्यादा एनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि दे नो वेरी वेल इन इंडिया एक्स वाई जेड एनीबडी कैन बिकम प्रोफेसर। और बहुत सारे यूटीडी में आप देखिए, आप भी खुद देखेगा, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट में जाएगा जो यूनिवर्सिटीज का, चाहे वो जीवाजी हो, चाहे बरकतुल्ला हो, चाहे, एक तो स्टाफ कम हो गया, सेकंड एक डिपार्टमेंट में ज्यादातर के प्रोफेसर ही बन जाते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड किसी को भी प्रोफेसर बना देते हैं, और एसोसिएट प्रोफेसर कम होते हैं, लेक्चरर 2-4 होते हैं, क्योंकि सबका प्रमोशन हो जाता है। हम लोग वी आर वेरी सिंपैथेटिक, वही थिंक कि दे दो, अपने हाथ से क्या जाता है, बना दो प्रोफेसर। लेकिन इन दैट वे दे वर डाइल्यूटिंग द प्रोफेसरशिप और द क्वालिटी ऑफ द प्रोफेसर, ये एक कारण। तो जरूरी नहीं कि प्रोफेसर के अंडर करें, मैं मेरे हिसाब से तो बेस्ट होगा, हाँ कि आई एम सीनियर प्रोफेसर, लेकिन मेरे हिसाब से अगर कोई रियली अच्छा काम करना चाहता है तो एसोसिएट प्रोफेसर के अंडर, जो कि अच्छा है इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशन और इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक करियर, जो अच्छा है उनको करिए। क्यों? रीजन क्या है मैं बताता हूँ आपको। एसोसिएट प्रोफेसर का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है, 2-4 कम से कम पीएचडी प्रोड्यूस कर चुका है, कुछ पेपर कम से कम प्रोड्यूस कर चुका है। फोर्थ, उनको एक चाह है कि आई वांट टू बिकम प्रोफेसर, एंड फॉर दैट आई वांट टू वर्क, आई वांट टू डू रिसर्च, गुड रिसर्च। सो वो इंटरेस्ट लेके आपके साथ काम करेगा और आपका पब्लिकेशन कराने का कोशिश करेगा। बट दोज हु हैव ऑलरेडी बिकम प्रोफेसर्स, उसके बाद और कोई प्रमोशन है ही नहीं, वो क्या, मुझे क्या करना, करने दो उनको, जो करना है करेगा, अगर मेरे पास आएगा पीछे पड़ेगा तब देखेंगे, नहीं तो कर रहा है मेरे लेन में बैठा है, बस दैट्स एनफ। तो वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, एक्सेप्ट वेरी फ्यू दोज हु आर क्रेजी फॉर पब्लिकेशन। बट देयर आर सम प्रोफेसर्स, उन लोग सोचते हैं बस पीएचडी करा दो हो गया, दैट इज नॉट गुड, इसके अंदर बिल्कुल मत जाइए। सर पब्लिकेशन, सर एक और डाउट है सर, जैसे कोई भी जर्नल के लिए पीयर रिव्यू जो रहता है उनको उसको देखना चाहिए, या फिर वो कितना टाइम, मतलब सबमिशन के बाद पब्लिकेशन में कितना टाइम ले रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए उनको सबमिट करना चाहिए? और दोनों दोनों, कुछ कुछ है जो कि काफ़ी टाइम लगाते हैं। हाँ कि आजकल ऑनलाइन पब्लिकेशन होता है, ऑनलाइन सबमिशन होता है, थोड़ा सा टाइम कम हो गया। पहले हम लोग का टाइम में देखिए, बिफोर 10 years आई एम टॉकिंग, एक एक जर्नल कभी कभी 1.5 साल 2 साल ले लेता था। तो ऐसे भी टाइम नौबत आता था कि वी हैव टू
विथड्रॉ द पेपर बिकॉज इट्स टेकिंग लॉन्ग टाइम, ये करते थे। लेकिन अब क्या होता है कि ऑनलाइन थ्रू से हम लोग का पास भी जब रिव्यू के लिए आता है, हम लोग को एक वार्निंग टाइप का आ जाता है, दिया जाता है कि विद इन 2 मंथ्स, विद इन मैक्सिमम 8 वीक्स आप उसको सबमिट कीजिए आपका रिव्यू रिपोर्ट। तो बार बार रिमाइंडर आता है, इसलिए आजकल थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, थोड़ा सा जल्दी। लेकिन कुछ जर्नल है उनका डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहता है, उसमें थोड़ा डिले हो जाता है, कभी कभी 1 साल 1.5 साल लग जाता है। जैसे बेंथम पब्लिकेशन का कुछ है, वो क्या करता है, आइदर ऑर्डिनरी जर्नल जैसे काम करता है या फिर बहुत टाइम लगाता है। एक पेपर हम लोग का 2 साल लगा दिया, यू कैन नॉट इमेजिन, 2 इयर्स। ना वो वापस कर रहा है पेपर ना कुछ, 2 साल। उसके बाद में उसने कभी नहीं सबमिट किया। तो उस तरह का ये में करेंगे तो आपका दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा जो जल्दी करते हैं उसमें देखिए। और पब्लिक में पेपर्स के बारे में बता दूं, जर्नल्स के बारे में, जो कि जिसको मुझे बताना चाहिए तो मैं ओरली बता देता हूँ, स्लाइड बिना देखते। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जर्नल्स, ठीक है। और एक तो होता है हाई लेवल वाला जर्नल, उसमें भी, और एक लो लेवल वाला प्रीडेटरी वाला जो कह रहे हैं। आप तो प्रीडेटरी वाले में बिल्कुल शामिल मत कीजिए, हाई लेवल में करिए। और आपका अगर काम छोटा सा है लेकिन इंटरेस्टिंग है, तो एक कैटेगरी ऑफ पब्लिकेशन होता है रैपिड कम्युनिकेशन। रैपिड कम्युनिकेशन, जो रैपिड कम्युनिकेशन होता है, इवन छोटा सा काम भी आपका है ना पब्लिश हो जाएगा, प्रोवाइडेड इट्स एन इंटरेस्टिंग टाइम। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे पता चला कि जो कैंसर ड्रग है, दिस कैन ऑल्सो वर्क फॉर कोविड-19 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये कैंसर ड्रग कोविड-19 में काम कर रहे हैं, एक छोटा सा मैं काम करके प्रूव कर दिया। अब ये बहुत वॉल्यूमिनस काम नहीं है, 15 पेज का पेपर नहीं होगा, 3 पेज का भी हो सकता है, 4 पेज का। ना दिस कैन बी सबमिटेड एंड इट विल पब्लिश वेरी इजीली एंड वेरी अर्ली, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, कॉमन आजकल चल रहा मैटर वही चल रहा है, तो ये पब्लिश हो जाएगा। अब आपका ये पब्लिकेशन, रैपिड पब्लिकेशन जो है ना, बहुत जल्दी कर दिया जाता है। उनका क्या होता है, कुछ स्लॉट उन लोग 2-2 पेज का, 2 या 3 पेज का खाली रखते हैं। जैसे ही आपकी पेपर इस महीने आ गया और ये जर्नल अगले महीने पब्लिश होगा, आपका इंटरेस्टिंग पेपर है तो फटाफट रिव्यू करके उसमें डाल देते हैं। जैसे स्टॉप जब अरेंजमेंट होता है ना, जैसे फंक्शन में क्या होता है, आपका बीच में एक आइटम डांस था, दूसरा डांस के बीच में कुछ कोई कैरिकेचर करने आ गया, कोई जोक सुनाने आ गया, एग्जैक्टली लाइक दैट, तो आपका काम को उसमें फिट कर देते हैं, क्योंकि योर वर्क वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू गेट द सेम क्रेडिट। आपको उतना ही क्रेडिट मिलेगा जितना फुल लेंथ पेपर में मिलता है, भले ये छोटा पेपर है, लेकिन एज ए रैपिड कम्युनिकेशन आप पब्लिश करें। एक तो रैपिड कम्युनिकेशन होता है, एक होता है शॉर्ट कम्युनिकेशन, उसमें कैटेगरी रहता है शॉर्ट कम्युनिकेशन। शॉर्ट कम्युनिकेशन में भी आप पब्लिश कर सकते हैं, छोटा सा है लेकिन उसी तरह का वो जल्दी पब्लिश हो जाएगा। हार्डली टेक्स 3 मंथ्स और 5 मंथ्स, मैक्सिमम 5 महीने में आपका पेपर होके आ जाएगा, पब्लिश हो, तो उसमें करिए, भले छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक होता है कैमरा रेडी पब्लिकेशन। आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। कैमरा रेडी पब्लिकेशंस के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत? नो सर। नहीं, कैमरा रेडी पब्लिकेशंस क्या होता है, मैं दूसरा बैच में लिया था ये सब। कैमरा रेडी जो है, कैमरा में क्या होता है, आप जिस तरह का बैठते हैं, जिस तरह का दिखेंगे, आपको कैमरा में क्या कहता है, आपका थोड़ा शार्ट को ठीक कीजिए, आपका ड्रेस को ठीक से रखिए, आप ढीलिए मत, गर्दन ठीक से रखिए, पलक मत झपकिए। ये कहता है ना, क्यों कहता है कि आपका फोटोग्राफी अच्छा है, और एट ए टाइम आ गया, क्लिक कर दिया, हो गया, और वही आपको दे दिया। कैमरा रेडी में आप जिस तरह का देंगे, जिस तरह का लिखेंगे, जहाँ फिट करेंगे आपका ग्राफ, जो कुछ भी करेंगे, सब एक साथ आ जाए। लेकिन उन लोग एक स्टैंडर्ड चाहिए। इफ यू आर एन एक्सपर्ट, हाँ, कि मैं उसको कैमरा रेडी में केवल एक्सपीरियंस वाले को कहता हूँ। इवन आई हैव पब्लिश्ड ओनली ट्वाइस इन कैमरा रेडी। जब मैं पहला कैमरा रेडी में सबमिट किया, इट टुक मोर देन 6 मंथ्स जस्ट फॉर एक्सेप्टेंस। बार बार उन लोग वापस कर देते थे, यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ कॉमा नहीं है, यहाँ दिस एंड दैट नहीं है, इसका फिगर आप यहाँ नहीं दिए, क्योंकि आपको पूरा ऐसा बना के देना पड़ेगा जैसे कि पब्लिश पेपर है। केवल उन लोग टाइप सेटिंग करेंगे, एक बार रिव्यू कर देंगे, टाइप सेटिंग करेंगे, क्वालिटी अच्छा है, काम अच्छा किए है तो पब्लिश करेंगे। सो कैमरा रेडी पेपर, भले इनिशियली थोड़ा टाइम लगता है आपको सब परफेक्ट सेट करने के लिए, लेकिन पब्लिकेशन प्रोसेस कम हो जाता है। एक बार सेटिंग ठीक ठाक हो गया, आप ठीक ठाक करके दे दिए, आपका अगर इंग्लिश अच्छा है या जो उस लैंग्वेज में आप देते हैं, तो उन लोग विद इन 2 मंथ्स पब्लिश करते हैं, विद इन 2 मंथ्स। तो वो एक कैटेगरी ऑफ पेपर्स होता है। तो आपको देखना पड़ेगा, यू कैन स्टार्ट विद शॉर्ट कम्युनिकेशन, यू कैन स्टार्ट विथ रैपिड कम्युनिकेशन, और यू कैन स्टार्ट if you are very good at English particularly, and
in managing the things or in एडजस्टिंग द थिंग्स कि ठीक ढंग से सजा कर देने का आपको एग्जैक्ट उनका फॉर्मेट के हिसाब देने का अगर क्वालिटी है यू कैन ट्राई विद कैमरा रेडी पेपर और आपको विद इन 6 मंथ पब्लिश हो जाएगा विद इन 6 मंथ्स और शॉर्ट कम्युनिकेशन तो विद इन 2 मंथ्स भी हो जाएगा विद इन 3 मंथ्स हो जाएगा ओके सर, थैंक यू सो मच सर। अदरवाइज लॉन्ग लेंथ पेपर में सबमिट कर वो आजकल जनरली प्रोसेसिंग थोड़ा सा जल्दी होगा आइदर रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस या आउटराइटली रिटर्न फ्रॉम एडिटोरियल ऑफिस या फटाफट हो जाता है कभी कभी तो हम लोग देखते हैं हम लोग का पेपर स्टूडेंट्स को मैं कह देता हूँ तुम भेज दो वो आज ही भेजा कल उसका वापस आ जाता है कि यू हैव नॉट मेंशन दिस वन प्लीज मेंशन इट अगेन रीसबमिट नेक्स्ट डे आ जाता है क्योंकि ईमेल में चले गया और यही कि उसमें भी थोड़ा ट्रिकी है आपको जब ऑनलाइन सबमिट करते हैं ना बहुत सारी चीज जानना पड़ेगा मैं देखूंगा कभी अगर टाइम मिलेगा तो मैं नेक्स्ट और भी कभी बता दूंगा आपको आई डोंट नो कब तक है एक्चुअली जो मैं पेपर हाउ टू राइट रिसर्च पेपर्स एंड टू पब्लिश रिसर्च पेपर वो वाला पेपर में लेता हूँ ये तो मैं पहली बार ले रहा हूँ लेकिन ये मुझे बोला गया लेने के लिए सो आई थॉट इट्स ओके बिकॉज़ आई हैव बीन इन्वॉल्व इन दिस किसी का कोर सब्जेक्ट से बिल्कुल पीजी है, एमएससी किया हुआ है उसने, फिर उसके जितने भी अप्लाइड फील्ड हैं वो उसमें पीएचडी के लिए अप्लाई करे, तो मतलब उसको जो सुपरवाइजर है वो अपने सब्जेक्ट वाले से छोड़ के इसको प्रेफरेंस क्यों देगा? मतलब ऐसा हो सकता है ना कि वो कहेगा कि आप प्योर केमिस्ट्री से हैं तो आपको नैनो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में कम प्रेफरेंस मिलेगा। नहीं, ऐसे नहीं है। हाँ, कि प्रेफ़र लोग करते हैं जो सुपरवाइज़र जिस फ़ील्ड में काम करते आया है उसी को प्रेफ़र करता है, उसी फ़ील्ड में कोई काम करे। लेकिन स्टूडेंट अगर इंटरेस्ट है और स्टूडेंट अगर करना चाहता है और चाहती है, वो उस फ़ील्ड में भी करा सकते हैं। सी सुपरवाइज़र का मेन ये होता है इट लाइज़ हियर एनीबॉडी कैन बी सुपरवाइज़र, गुड सुपरवाइज़र इफ ही इज़ डिलिजेंट मतलब हार्ड वर्किंग really interested for research, really truly interested for research, and third thing that he has got something here. It's all how you are planning the experiments, how you are planning the things. छोटे छोटे चीज में बड़ी बड़ी होता है मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी बड़ी चीज होता है सो इट मोस्टली इट लाइज हियर सुपरवाइजर का दिमाग अगर सही है और रियली इंटरेस्टेड है वर्क ओरिएंटेड है तो वो फटाफट काम करा देगा चाहे कोई फील्ड इनिशियली व्हेन आई वाज वर्किंग लेट मी टेल यू व्हेन आई वर्क मैं नहीं करूँगा मैं बहुत बड़ी मेरा जैसे जैसे मेरा आ रहा है मतलब थोड़ा सा एज हो रहा है थोड़ा इंटरेस्ट घट रहा है अदरवाइज इनिशियली हम जब काम करते थे मॉर्निंग टू इवनिंग मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 8 मुझे लोग क्रिटिसाइज करते थे कि क्यों काम कर रहे हो क्या मिलने वाला है तुम भी उसी टाइम प्रोफेसर बनोगे हम जिस टाइम बने तुम भी जब प्रमोट करोगे हम भी नहीं काम करके और हुआ भी है लेकिन आई हैड सम इंटरेस्ट राइट फ्रॉम बिगिनिंग आई हैड सम इंटरेस्ट कि मुझे तो रिसर्च करना ही है और रिसर्चर ही बनना साइंटिस्ट बनना मैं इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पहले में सीनियर रिसर्च अफसर था तो उसको भी छोड़ दिया अब बात है तो 8 से 8 काम करते सो एक सुपरवाइजर को 8 से 8 तरह का कम से कम काम करने का आदत रखनी चाहिए केवल ही शुड नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट क्योंकि दोनों का चाहिए सुपरवाइजर इंटरेस्ट ले रहा है स्टूडेंट अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो भी कोई काम की नहीं है स्टूडेंट इंटरेस्ट ले रहा है सुपरवाइजर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो भी काम की नहीं तो दोनों का अच्छा होना जरूरी है गुड स्टूडेंट रियली डेडिकेटेड स्टूडेंट एज वेल एज रियली डेडिकेटेड सुपरवाइजर देन ओनली प्रोग्रेस होता है अदरवाइज नहीं और कोई भी फील्ड हो आप अगर कहें कि मेरे सुपरवाइजर जो प्रॉपर सुपरवाइजर है ही इज ए गुड वर्कर बट गुड वर्कर सो फार इन हिज फील्ड बट नॉट in the field in which I am interested. Well, I am also from chemistry, so you can work with him. क्लियरली बात करो कि सर मैं इससे करूँगा जो भी प्रॉब्लम आएगा मैं सॉल्व करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा आपको आपकी फील्ड का कुछ और 2-3 आदमी के साथ बात करना पड़ेगा थोड़ा सा कहीं दूसरा यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा दूसरा रिसर्च इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा कोलैबोरेटिव रिसर्च करना पड़ेगा यस यू कैन डू दैट थिंग पीपल आर रेडी थोड़ा सा जाना पड़ेगा थोड़ा सा कष्ट करेंगे तो हो जाएगा सो मैं बताता हूँ रिसर्च मेरा जो कैंसर में काम किए हैं दो स्टूडेंट 2 स्टूडेंट वर्क ऑन ब्रेस्ट कैंसर ठीक है मैं ब्रेस्ट कैंसर में मेरे लेबोरेटरी में ज़्यादा है ही नहीं मेरा कोई इक्विपमेंट है नहीं ब्रेस्ट कैंसर में हम काम कर सकते थोड़ा बहुत घट मैंने ऑर्डिनरी काम का हो जाता है जो एस्टेब्लिश पैरामीटर्स आई सेड आर यू रेडी टू वर्क इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम ना यस सर आई कैन वर्क ठीक है अगर तुम ये तैयार हो तो करो सो जेएनयू में काम कर जेएनयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी
She worked with me, but most of the time she spent in JNU in the particular laboratory, that is ये कैंसर बायोलॉजी लेबोरेटरी। एक प्रोफेसर काले करके थे जो कि वाइस चांसलर थे, उनका पास टाइम नहीं था, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई गाइडेड कि कैसे प्लान करना है क्या नहीं है। लेबोरेटरी वर्क जाके वहाँ किया, एंड सी कुड पब्लिश गुड नंबर ऑफ पेपर्स। नाउ सी इज ए पोस्ट डॉक फेलो, अभी तो साइंटिस्ट बन गया यूएसए, लड़ी है। सिमिलरली और एक था आपका जो ये कंडक्ट कर रहे हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, एक स्टूडेंट वहाँ का जो टॉपर था, आउट ऑफ नो वेयर ही केम टू मी, सर मैं आपके अंडर रिसर्च करूंगा। तुम यहाँ कैसा है, टॉपर था, इंस्पायर करो। बोला नहीं सर, मुझे आपका मैं पब्लिकेशन देखा हूँ इसमें लिटरेचर में, आपके साथ मुझे करना है। ठीक है करो, बट आर यू डेडिकेटेड, क्योंकि मैं कंडीशन रख देता हूँ, आप अगर मेरे अंडर कोई ज्वाइन कर रहा हो तो तुमको कम से कम 3-4 पेपर बिफोर सबमिशन करना ही है, नहीं तो मैं चाहे 10 साल भी लगेगा नहीं कराऊंगा सबमिशन। मैं पहले कंडीशन रख देता हूँ। सेकंड कहता हूँ, यू हैव टू बी वेरी मच डेडिकेटेड, बट फॉर्चुनेटली ही वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड ही कुड पब्लिश 10 पेपर्स बिफोर सबमिशन ऑफ थीसिस, एंड नाउ ही इज अ लेक्चरर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सो कोई कोई प्रोडक्ट, आपका बुंदेलखंड का प्रोडक्ट मैं आपको बता, तो बात ये होता है कि ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पर भी और टीचर और सुपरवाइजर, दोनों इंटरेस्ट अगर लेंगे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा, ही ऑल्सो टुक हेल्प फ्रॉम सम अदर, फार्मेसी डिपार्टमेंट का हेल्प लिया। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप उनको को सुपरवाइजर बना दीजिए, और को सुपरवाइजर तो आप एक की जगह में 2-3-4-5 जितने भी रख सकते हैं, सो कम से कम एक तो रख सकते हैं, तो को सुपरवाइजर उनको बना दीजिए। मेन सुपरवाइजर आपका यहाँ हुआ, मिल के काम हो जाएगा, हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, मेन थिंग इज वेदर one is really interested or not, both supervisor as well as मेंटर स्टूडेंट दोनों को इंटरेस्ट लेना जरूरी है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। एनीथिंग एल्स?